क्या आपने बोला एडवर्सिटी ज़रूरी है, बट आप इसमें भी बिलीव करते हैं कि जिसकी ज़्यादा बड़ी एडवर्सिटी उसके लिए उतना ही अच्छा आगे पुल मिल जाता है? और आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए हाँ, ये बात सच है। आपके पास जब मुश्किल दौर आता है वो आपको हंग्री बनाता है, एंड व्हेन यू आर हंग्री ऑटोमेटिकली आपके पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है देन यू विल नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसके बाद जो आपके बैचमेट्स हैं, व्हेन यू यूज्ड टू सी योर बैचमेट्स डूइंग सो वेल, placed across the world, working in multinational companies, and you are struggling in your hometown, then obviously you would question yourself whether whatever you are doing is right or not. तो 15 lakhs a month आप उस एज में क्या काम करके कमा रहे थे? इसीलिए जब आप ऐसे फेज से गुजरते हो ना, that makes you really strong. तो जो बाकी लोगों को challenges लगते हैं वो मुझे बहुत ही केक वॉक जैसी चीज़ें लगती हैं. So I feel when you go through a difficult phase, that actually prepares you for a lot of amazing things. सारे तो आपको अच्छे clients और vendors नहीं मिलते, तो कोई भी क्लाइंट और वेंडर आपको फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकता. सर एड्स में इतना पैसा लग गया, सर ये इवेंट में ऐसा हो गया. आपको पता है ग्राउंड रियलिटी. आई रियलाइज माई ट्रू पोटेंशियल कि यार आई एम मेंट टू डू सो मच मोर. इफ समवन इज वाचिंग यू राहुल जी एंड ही इज थिंकिंग इन हिज माइंड, कैन आई अचीव माई ड्रीम, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई कैन गिव हिम एक्स अमाउंट ऑफ मनी, बट दिस मोमेंट इज समथिंग दैट ही विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. Welcome everyone to this special episode of Beyond Billables. Today's guest is someone who wears multiple hats. He's a business and sales coach. He's a 4-time TEDx speaker. He's an 8-time Josh speaker. He helps corporates scale their businesses. He's an educationist. He's a public speaker. I'm talking about Rahul Bhatnagar ji. He is a national icon for us today, and he shares us how easily success can be done in today's day and age. हम बहुत सारे अपने पॉडकास्ट देखे होंगे अबाउट सक्सेस के लिए आई नीड मनी, आई नीड रिसोर्सेज, यू नीड टू बी रिसोर्सफुलनेस. बट इन दिस एपिसोड यू विल फाइंड दैट सक्सेस के लिए व्हाट इज़ रिक्वायर्ड आर फ्यू basic requirements and characteristics which are already available within us. We also deep dive into what is the mindset of a champion, what it takes to become a champion and achieve success in life. बहुत time in our life we get stuck because of our ability to not take decisions, our ability to not have faith in us. In today's podcast we explore by stepping into Rahul Bhatnagar ji's mind that what is the requirement of being a champion and how easily you can be a champion. And lastly, we're going to talk about the world of business, sales and coaching. How sometimes we keep on working, हम बहुत संघर्ष करते हैं, but we don't get results because that's not the problem of effort, it's the problem of direction. So I'm very, very excited to bring you into this episode where we had a mind-blowing conversation with Rahul ji and we got to learn so many things about business, about life and how to be successful. I thank you for joining and watching this episode of Beyond Billables. Let's grow together. Rahul ji, thank you for coming to Beyond Billables. It's such a pleasure to have you. Thank you so much. Rahul ji, I was thinking exactly किस point पे start किया जाए. I know somewhere you said, I want to be remembered as a passionate individual who won by defying odds. इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये थोड़ा सा तो लंबा क्वेश्चन है, मैं आंसर देता हूँ इसका. सो बेसिकली माय होम टाउन इज़ देहरादून. मैंने देहरादून में ग्रेजुएशन करा था, उसके बाद मैं MBA करने के लिए पुणे गया था. तो जब मैं MBA कर रहा था आई वॉज डूइंग इट इन ऑयल एंड गैस सेक्टर. तो इंडिया में मुश्किल से 50 लोग होंगे जो सेक्टर में पढ़ते होंगे. लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल. अभी हमारी बात भी हो रही थी बैक स्टेज, तो मुझे पता चला आप बहुत अच्छा काम करते थे टोस्ट मास्टर्स में, एंड कम्युनिकेशन वॉज ऑलवेज माई फॉर्टे. सो आई थॉट कि यार हमें कुछ अलग करना चाहिए, मे बी समथिंग वेयर इन वी कुड ऑपरेट फ्रॉम आवर होम टाउन, बिल्ड अ बिजनेस ऑफ आवर ओन. तो तब हम लोग वापस देहरादून गए और देहरादून से हमने हमारा वेंचर लॉन्च करा था जिसका नाम था USP कार्ड्स. तो हम लोग डिस्काउंट कार्ड्स बनाते थे, घर जाके, ऑफिस जाके, एजुकेशनल फेयर्स में जाके, एंटरटेनमेंट फेयर्स में जाके हम लोग डिस्काउंट कार्ड्स बनाते थे. अब हुआ ये कि पैशन तो बहुत ज़्यादा था लेकिन आता नहीं था काम करना. तो हमने हमारे नंबर्स कैलकुलेट करे थे. हमने ऐसा कुछ बनाया था कि यार पहले महीने में हम लोग 500 रुपये का कार्ड बनाएंगे, 3000 कार्ड्स बन जाएंगे, 15 लाख का रेवेन्यू पहले महीने में आ जाएगा. 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 2.5 साल हुआ, वो रेवेन्यू कभी आया ही नहीं. क्योंकि
आप सिर्फ पैशन के बेसिस पे ऑपरेट कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि ये बिजनेस कैसे वर्क करता है, जेन्युइन बिजनेस है भी कि नहीं है. आई वॉज ऑल्सो वर्किंग विद पीपल जो खुद बिजनेस को इतना डीपली नहीं समझते थे. लाइक वी वर वर्किंग विद वेंडर्स जिनके पास जाके हमारे कार्ड के थ्रू डिस्काउंट्स मिलते थे. तो हमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगा इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स फॉर अस. और बिकॉज आपके पेरेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब बैकग्राउंड, नोबडी इन आवर एंटायर फ्रेटर्निटी हैड एवर डन अ बिजनेस. तो होता क्या है ना, आप अगर एक पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी से होते हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा करना आपके लिए ईजी हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ रोड मैप, यू हैव गाइडेंस, यू हैव पीपल हु कैन टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. लेकिन अगर आप बिजनेस करने वाले हो तो आपको पता ही नहीं होता. फिर मैं बड़ा बेटा हूँ घर का. आई हैव माई यंगर ब्रदर, ही स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही वॉज फ्रॉम हंसराज. तो पढ़ाई करने के बाद ही ऑल्सो जॉइंड अस. तो आपके ऊपर अब दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, और आप पैसे कमा नहीं रहे हो. आपका काम भी ऐसा नहीं है जो स्केल हो सके. आप काम भी अपने खुद के शहर में कर रहे हो, तो आपके आसपास आपके रिश्तेदार, आपके जो दोस्त हैं, आपके पापा के जो दोस्त हैं, ऑल ऑफ देम हैव अ आई अपॉन यू कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. वो आपके खिलाफ बहुत सारी बातें करते थे. तो ऑनेस्टली उस समय पे तो ऐसा था कि यार पैसे नहीं थे. लेकिन एक अच्छी चीज़ मैंने ये करी थी, व्हेन आई वाज डूइंग माई MBA इन पुणे, आई वाज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जो मेरा एजुकेशनल लोन था वो मैंने उतार दिया था. तो वो प्रेशर नहीं था सर के ऊपर कि यार आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना है. बट इट टुक अस अबाउट 5.5 to 6 years टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ देहरादून, understand that what we are doing is not going to work in the longer run, shift our entire operations online. उसके बाद हमने वेबिनार्स करना शुरू करे, कम्युनिकेशन कोचिंग करना शुरू करा. एंड अगर आप पैसों की बात करोगे, ये मैं बिल्कुल भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ. देयर वाज अ टाइम व्हेन वी यूज्ड टू जेन्युइनली सर्वाइव फॉर अ मंथ एट जस्ट ₹500. मैं अपने घर पे रहता था, मम्मी पापा लोगों के संग रहता था. तो आपके पास, आपको रेंट नहीं देना, खाना नहीं, पैसे नहीं देने हैं, घर पे खाना मिल रहा है. एंड बिकॉज आई वॉज अ टीम लीडर, वी हैड 7 people in our team. सो वेन एवर देयर वर मंथ्स वेर इन वी अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, वो पैसा पहले मैं अपनी टीम को देता था, क्योंकि मुझे लगता था यार मैं तो ठीक ठाक परिवार से हूँ. ऐसा नहीं है कि मेरे को हर महीने आई हैव टू हैव मनी टू पुट फूड ऑन माई टेबल. दैट वॉज नॉट द केस. सो आई यूज टू गिव मनी टू अदर पीपल, विच आई नाउ रियलाइज वॉज अ मिस्टेक. उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग. तो वो बहुत लंबे समय तक चला. एंड इवेंचुअली ऐसा हुआ, फॉल आउट हुआ. जो मेरे टीम मेंबर्स थे, कितने टाइम तक? 5.5 years. 5.5 years. हाँ. और मैं यार MBA में ना, आई वॉज द बैच टॉपर, I was the Toastmasters president, I was the Mr. Fresher, I was the head of the placements department. तो सारी अच्छी चीज़ें मैंने करी. उसके बाद जो आपके बैचमेट्स हैं, when you used to see your batchmates doing so well, placed across the world, working in multinational companies, and you are struggling in your hometown, then obviously you would question yourself whether whatever you are doing is right or not, multiple times. But you cannot show that on your face. वो आपके चेहरे पे कभी भी रिवील नहीं होना चाहिए, बिकॉज 7 लोग आपको लुक अप टू करते हैं, मम्मी पापा लोगों को भी आपको आंसर देना है. तो वो वाला टाइम इसीलिए मुश्किल था. पर अभी जब मैं सोचता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में बात भी नहीं करता मेरे वीडियोज़ में. मतलब मैं ना ऐसी स्टोरी लाइन वाले वीडियोज़ नहीं बनाता कि इतना दुख था मेरे जीवन में, वैसा हो गया. इट वाज अ बिफोर एंड आफ्टर. हाँ, मैं नहीं बनाता इतने वीडियोज़. आप मेरे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी देखेंगे, आई डोंट टॉक अ लॉट अबाउट इट. लेकिन कोई पूछता है तो मैं बताता ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट व्हेन यू हैव गॉन थ्रू अ फेज लाइक दिस, उसके बाद आपको ना डर नहीं लगता चीज़ों को लेकर. एक अनुपम खेर जी की लाइन थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैंने सुनी थी कि अगर एक इंसान बारिश में भीगा हुआ होता है तो उसे पानी से डर नहीं लगता. तो अब मुझे नहीं लगता डर. मुझे लगता है मैं कितना भी बुरा कर ले जाऊँगा, मैं 500 रुपये महीने पे तो नहीं पहुँच सकता ना यार. आपसे भी बोलूँगा तो 1000 रुपये तो आप भी उधार दे दोगे मुझे. तो इसीलिए जब आप ऐसे फेज से गुजरते हो ना, दैट मेक्स यू रियली स्ट्रॉन्ग. तो जो बाकी लोगों को चैलेंजेस लगते हैं वो मुझे बहुत ही केक वॉक जैसी चीज़ें लगती हैं. सो आई फील व्हेन यू गो थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, दैट एक्चुअली प्रिपेयर्स यू फॉर लॉट ऑफ अमेजिंग थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर. सो एवरीबडी शुड गो थ्रू अ फेज लाइक दैट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक माइंडसेट पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसी पे, ऑल्दो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम 1 by 1 जाएंगे. बट इस माइंडसेट पे कि क्या आपने बोला एडवर्सिटी ज़रूरी है, बट आप इसमें भी बिलीव करते हैं कि जिसकी ज़्यादा बड़ी एडवर्सिटी, उसके लिए उतना ही अच्छा आगे पुल मिल जाता है इन लाइफ? यार ये ना मतलब एक ग्रे एरिया है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है. बताता हूँ क्यों. अब एज अ कोच मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ, पाथ देता हूँ कि भाई आप इस दुख से ना गुजरो जिससे कि मैं गुजरा था. और आपके क्वेश्चन का आंसर देते हुए हाँ ये बात सच है. आपके पास जब मुश्किल दौर आता है वो आपको हंग्री बनाता है. एंड व्हेन यू आर हंग्री, ऑटोमेटिकली आपके पास जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है, देन यू विल नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, क्योंकि बहुत सालों के संघर्ष के बाद आई है. तो आप उसमें पूरा अपनी शिद्दत से काम करते हो. तो ज़रूरी नहीं है कि आप एडवर्सिटी से गुजरो. अगर आपको एक राइट पाथ मिल जाता है उसे फॉलो कर लो. मैं नहीं चाहता कोई मेरी तरह 5.5 साल तक संघर्ष करे इतने रुपए पे. अगर आपको पहले से, अगर मतलब इफ़ आई वर टू ट्रेड और कोई मुझे बताता कि यार राहुल जो ये कर रहा है तो ये गलत है, इसको चेंज कर ले, तो मैं नहीं जाना चाहता भाई उस 5.5 साल के दौर में, दुख में, जो भी है. लेकिन उसने मुझे हेल्प क्यों करा है? बिकॉज नाउ दैट आई कैन नॉट गो बैक एंड चेंज इट,
तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि यार वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा लर्निंग फेज था, और उसकी वजह से अब मेरे लिए चीज़ें मुझे लगता है कि आसान है। अब बहुत सारी चीज़, जैसे मैंने पहले बोला था, बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर नहीं लगता। जैसे अगर कोई एक इवेंट हम कर रहे हैं, उस इवेंट में अगर मुझे पता है कि मेरा ब्रेक इवन 4 करोड़ रुपए में होगा, आई वुड बी विलिंग टू टेक दैट रिस्क। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं ये पैसा जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले करा तो अभी भी करा जा सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंडली, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट फेज बोलूँगा, या लर्निंग आपकी बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर आप किसी के संग काम कर रहे हो, सारे तो आपको अच्छे क्लाइंट्स और वेंडर्स नहीं मिलते, तो कोई भी क्लाइंट और वेंडर आपको फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि सर एड्स में इतना पैसा लग गया, सर ये इवेंट में ऐसा हो गया। आपको पता है ग्राउंड रियलिटी, घड़े घड़े का पानी पी लिया जैसे तो जब आपको ग्राउंड रियलिटी पता है तो फिर आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अमेजिंग राहुल जी। अब आपने एक एंटरप्रेन्योर की भी एक एस्पेक्ट छेड़ा था। आपने बताया आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई भी बिजनेस साइड से नहीं है। आप कैसे बिजनेस साइड में आए? मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली आई वॉज बॉर्न टू डू दिस। जब मैं छोटा था, मैं कॉमिक किराए पे लेके आता था, तो जैसे 20 रुपये की कॉमिक आती थी, वो 2 रुपये में किराए में मिलती थी, मैं 1 घंटे में पढ़ लेता था। फिर मैं 6-7 दीदी भैयाओं को वो कॉमिक एक दिन में रेंट आउट करता था, तो मैं 10 रुपये कमाता था। अगर देखा जाए तो 500% का प्रॉफिट हो गया। बहुत ज़्यादा। आज की डेट में मैं कोई बिजनेस करूँ जिसमें 500% का प्रॉफिट है, मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार ये तो अच्छा है। तो मैं ना साइकिल में एक मेरे दोस्त को आगे बिठाता था, एक को पीछे बिठाता था। हम कॉमिक्स 1/3 प्राइस में खरीद के लाने लगे, उसको किराए पे देने लगे। तो जब मैं छोटा था तब भी मेरे पास 600-700 कॉमिक्स हो गई थी जो मैं किराए पे देता था। एंड मेरा दिमाग इन्हीं सब चीज़ों में चलता था। हम क्रिकेट मैच खेलने जाते थे, जैसे होता था ना बेटिंग इन द सेंस, मैच में पैसे नहीं लगा रहे हैं, हम पैसे का मैच खेल रहे हैं कि जो टीम जीतेगी वो इतने रुपये लेके जाएगी। तो मैं उसमें भी पैसे लगाता था। मुझे था यार हम वाला मैच भी जीतेंगे। तो वो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट पहले से था, फियरफुल नहीं था नेचर कभी भी। और दूसरा, जब मैं MBA करने गया, वो मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग फैक्टर रहा, क्योंकि मैं जब बाहर निकला अपने एनवायरनमेंट से, when I interacted with people who came from bigger cities, from wealthier families, and yet I was in the limelight throughout those 2 years, I realized my true potential कि यार I'm meant to do so much more. तो वो confidence मिला। उसके बाद मुझे लगा, and I was also a part of a direct selling organization wherein we were making very good money. तो मुझको वो confidence मिला कि यार बिजनेस भी कर सकते हैं, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। और एक और चीज़ भी है, माई पेरेंट्स वर अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जब वो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते थे, तो बचपन में जब हम सो के उठते थे तो घर में कैसेट्स चलते थे, CDs चलते थे, तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली वो सारा नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आता रहता था। वो चीज़ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करा, आई बिलीव। सो दैट हैज हेल्प्ड अस। आपने बताया कि जब आप टॉपर भी थे, प्लेसमेंट सेल में भी थे, उस टाइम आप बहुत सारी जॉब्स के बारे में अवेयर हो रहे होंगे जो आपके कॉलीग्स को मिल रही है, शायद कुछ हाई पेइंग जॉब्स भी होगी। तो उस टाइम आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं बिज़नेस में जाऊं जिसमें मुझे पता नहीं कि हाउ मच विल आई मेक, वर्सेस अ गुड जॉब विद अ गुड पैकेज, मे बी इंटरनेशनल या फिर इन अ गुड MNC इन इंडिया? तो उस टाइम आपकी क्या सोच थी, या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि बिजनेस ही करना है? आई फील वी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस समय पे मेरा माइंडसेट ऐसा था कि नहीं यार, जॉब नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि ये 2 साल मेरी लाइफ के लास्ट 2 साल है जब मैं मस्ती कर सकता हूँ, उसके बाद तो मैं नौकरी करने चला जाऊँगा, सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा। दैट वाज माय माइंडसेट। इसीलिए मैंने बोला दैट वी इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी मेरा माइंडसेट बिल्कुल उससे विपरीत है। तो तब जब मैं MBA करते हुए, आई वॉज अर्निंग अबाउट 50K अ डे। मैं कितना उस समय पे 20-21 साल का, 22 साल का था। तो जब आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आपको तो फिर कोई भी जॉब लगेगी ना यार, कि मेरे लायक ही नहीं है यहाँ पे। जितना पैसा मैं एक दिन में कमाता हूँ वो मुझे 1 महीने का देंगे। सो व्हाई शुड आई डू इट? इसको थोड़ा जूम इन करें। आपने ये एस्पेक्ट काफ़ी जल्दी बता दिया। 50K अ डे, 50,000 अ डे, ये आप कौन सी जॉब कर रहे थे? नहीं, आई वाज नॉट डूइंग अ जॉब। मैंने बोला ना, आई वाज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें काम कैसे होता है, एंड हाउ डज वन अर्न 50,000 रुपीज अ डे, विच इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 30 days विल बी 15 lakhs रुपीज। तो 15 lakhs अ मंथ। आप उस एज में क्या काम करके कमा रहे थे? सो बेसिकली मैंने MBA में कर रहा था, तो हमारे को एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की अपॉर्चुनिटी वहाँ पे दिखी थी, उसका मैं पार्ट बना था। और वहाँ पे बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा था पहले से, और क्योंकि MBA में हर जगह से लोग आए थे। जैसे मैं पुणे में था, मैं देहरादून से था, कोई मुंबई से था, कोई जयपुर से था, कोई बैंगलोर से था। सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस ऑल दीज प्लेसेस एंड आई डिलीवर्ड प्रेजेंटेशंस। तो मेरी प्रेजेंटेशंस देख के बहुत सारे लोग थे जो कि हमारे संग कनेक्ट होते गए, हमारे उस कंपनी में ऐड होते चले गए। और मैं उस कंपनी को भी बहुत ज़्यादा पैशन के संग करता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि अरे यार ये लंबा नहीं चलेगा। और वो तब हुआ जब वो कंपनी बंद हो गई थी। जिस दिन वो कंपनी बंद हुई थी उस दिन भी मेरे 23-24 लाख रुपीज़ स्टक थे उस कंपनी में। वाह।
एंड उसी से ही मैंने मेरा एजुकेशन लोन चुकाया था. हमारे कॉलेज में हमने हमारे कॉलेज ओनर के बाद सबसे महंगी कार खरीदी थी, तो मेरे HOD वगैरह से भी महंगी कार मेरे पास थी. सो दे यूज्ड टू आस्क मी कि यार आप क्या करते हो, कैसे इतना पैसा आता है. लीगली काम कर रहे हैं ना. हाँ, सब लीगली था उसमें. तो हमने क्या करा था, मैं आपको ये भी बताता हूँ. जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आई टुक अ रिस्क. जैसे उसमें ऐसा होता है कि आप कितनी IDs लगा के ज्वाइन करते हो बिजनेस को. तो मैंने पहले दिन प्लान बनाया पेपर के ऊपर कि यार बिकॉज आई एम गुड विद नंबर्स, तो मतलब यार हम ना 15 IDs इस बिजनेस में ज्वाइन करेंगे करने के लिए. तो 15 IDs आप लगाओगे तो आपका जो अमाउंट आपके पास आएगा वो कंपाउंडेड आएगा. अगर आप 15 IDs के बारे में बताइए, व्हाट वुड IDs मीन? IDs का मतलब जैसे एक मैंने अपने नाम पे बिजनेस करा, एक सौरभ मेरे भाई के नाम पे करा, एक मम्मी के नाम पे, एक पापा के नाम पे, एक दोस्त के नाम पे, ऐसे करके. सो आई गॉट लाइक 15 पीपल एनरोल्ड फ्रॉम माई ओन फैमिली इटसेल्फ. ओके. तो अगर हम किसी एक नए पर्सन को एनरोल कराते हैं तो वो जो अमाउंट है फिर वो मेरे हर 15 IDs में थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा. इज इट लाइक Amway का? जैसे Amway का था. माई डैड वॉज अ पार्ट ऑफ Amway. ओके. एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम स्पीक एशिया. स्पीक एशिया, ओके. जब मैं पुणे में था तब हम उसका पार्ट थे, और फिर वो कंपनी बंद हो गई थी. तो आपने जो पैसा कमाया वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म ही हो जाता है. एंड बिकॉज आपको बिजनेस कैसे वर्क करता है वो तो नहीं पता था हमको, तो बस डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव था. इसीलिए हमको अगेन, और आप ये भी देखो ना, फ्रॉम 50,000 अ डे टू 500 रुपीज पर मंथ, मैं वो दोनों फेजेस देख चुका था. तो वो वाला टाइम जब इतना पैसा आता था कि आप घूम रहे हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है पैसों वैसों का, क्या इतने पैसे हैं क्या करना है. फिर उसके बाद वो वाला टाइम जब आप लिटरली संघर्ष कर रहे हो पैसों के लिए, तो वो दोनों फेजेस मुझे दिखाए. मुझे लगता है दोनों फेजेस भगवान जी ने इसीलिए दिखाए थे कि भाई देख ले तू, ऐसा होता है. अब दोनों चीज़ें अगर तू झेल सकता है तो आगे और भी अच्छी चीज़ें कर ले जाएगा. तो अब इस टाइम जब आपने डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जी, क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी वजह से आपकी सेलिंग साइड बहुत स्ट्रांग हो गई? 100%. तो व्हाट वुड बी द बिगेस्ट लेसन? मैं लेसन इसलिए पूछूंगा बिकॉज आई एम अ लॉयर, एज यू नो. हमें सेल्स के बारे में तो टैबू है. देयर बार काउंसिल रेगुलेशंस, वी आर नॉट अलाउड टू मार्केट, एडवर्टाइज, सोलिसिट. तो एज अ सेलिंग में आपने बिगेस्ट लेसन क्या सीखा जो नॉर्मली लोग नहीं अप्लाई कर रहे? एंड मे बी हमारे ऑडियंस से व्यूअर्स के लिए ऐसी क्या चीज़ आप बता सकते हो जो लोग अपने बिजनेस में एक सटल चीज़ में ही अप्लाई कर सके ताकि उनका बिजनेस या रेवेन्यू बढ़े? देखो, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं दोनों के आंसर्स देता हूँ. पहले जैसे अगर आप लॉयर हैं या कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लोग पब्लिसाइज नहीं कर सकते अपने काम के बारे में, लेकिन एजुकेट तो कर सकते हैं. एंड आज के टाइम पे सेलिंग का एकमात्र तरीका ही एजुकेशन है. ये भी बताता हूँ क्यों. सी, मोस्ट ऑफ द पीपल कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स, या थोड़ा मिडिल क्लास से भी अगर इकोनॉमिकली देखें उससे भी थोड़े कम बैकग्राउंड से आते हैं. यू डोंट हैव अ ह्यूज कैपिटल टू इन्वेस्ट, you don't have enough resources, you don't have enough connections. So the only way you can actually generate an audience base and revenue in the beginning is through your content. तो जो आप कंटेंट डालते हो उसके माध्यम से आप लोगों को एजुकेट करते हो. आप लोगों को इतना ज़्यादा एजुकेट करते हो कि लोगों का ट्रस्ट फैक्टर आपके ऊपर बढ़ता है. उनको नज़र आता है कि यार इस बंदे के पास कुछ है मुझे सिखाने के लिए, समझाने के लिए. और उसके बाद फिर वो आपके पेड ऑफरिंग्स को भी, पेड प्रोडक्ट्स को भी लेते हैं. तो अगर आप भी कंटेंट बनाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को एजुकेट करेंगे. जो लोगों को आप एजुकेट करेंगे, अगर कभी उनको सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लॉयर की, तो फिर तो वो ऑटोमेटिक सी बात है ना, आप ही के पास आएंगे. और आप वहाँ पे आई डोंट थिंक कि किसी भी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं या कुछ भी गलत कर रहे हैं. सेकेंडली, आपने अपना कंटेंट बनाया, आपने साथ साथ ई बुक्स भी बनाई लोगों को एजुकेट करने के लिए कि अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो इस एस्पेक्ट के ऊपर. आप जैसे कंटेंट के बारे में बोल रहे हैं, कंटेंट का एक एग्जांपल दीजिए. जैसे व्हाट वुड अ डॉक्टर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर किस तरीके का तीनों कंटेंट के एग्जांपल्स देता हूँ मैं आपको. जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने बोला कि आपकी कंपनी में आपको कोई GST में प्रॉब्लम नहीं आए, रूल्स को आपको फॉलो करना ज़रूरी है. तो कितने प्रकार के GST होते हैं, कॉम्पोजिट होता है, नॉन कॉम्पोजिट होता है, आप GST फाइलिंग की लास्ट डेट क्या होती है, अगर आप लेट कर देते हो तो आपको कितना नुकसान होता है, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको GST सर्टिफिकेट कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए. आप मुझे बताओ ना, ये सारी चीज़ें, ये सारे एस्पेक्ट्स एक आम इंसान को तो नहीं पता होते. अगर हम एक डॉक्टर की बात करें तो एक मैंने सेशन करा था फॉर डेंटिस्ट. तो वहाँ पे एक सर ने बताया था, जो डेंटिस्ट थे वहाँ पे, कि यू विल बी सरप्राइज. मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोगों को बताया था कि जो एवरेज ड्यूरेशन होता है आपका टूथब्रश करने का वो 2 मिनट होना चाहिए. ये सबसे एस्पेक्ट अच्छा है कि 2 मिनट से कम भी मत करो, उससे ज़्यादा भी मत करो. तो मैंने देखा कि लाखों लोगों को ये चीज़ नहीं पता थी. सो पीपल थैंक्ड मी. तो उनके लिए जो बहुत बेसिक और सरल नॉलेज है, बाकी लोगों के लिए बहुत इंपैक्टफुल है. सिमिलरली अगर कोई लॉयर है, अब मैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर, मुझे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं. तो वो सारी चीज़ों को आप एजुकेट कर सकते हो कि आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है. अगर कोई आपके खिलाफ फेक केस कर रहा है, अगर आपको अपना
लिटिगेशन में किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देहरादून में बैठ के काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार अगर हमारा कोई भी केस हो, कुछ भी हो, बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर यू शुड बी प्रिपेयर्ड, तो सब कुछ देहरादून के लेजिस्लेशन के अंतर्गत ही आना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं अपने लिए सोच के रखूँगा, करके रखूँगा। ये सब चीज़ें नहीं पता होती। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर मैं कोई इवेंट कराना चाहूँगा तो इवेंट में अगर मैं हॉल बुक करता हूँ तो मैं होटल वालों को बोलूँगा कि जो आप बिलिंग करेंगे वो बिलिंग प्लीज़ हॉल के ऊपर करिएगा, फूड के ऊपर मत करिएगा। उनके लिए इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, लेकिन फूड के ऊपर जो जीएसटी होता है वो मैं क्लेम नहीं कर सकता एज अ बिजनेस ओनर। हॉल वाला मैं क्लेम कर सकता हूँ। अगर यही एक चीज़ मैंने किसी इवेंट वाले बंदे को बताया जो इवेंट करते हैं, और हर इवेंट में अगर उनका 1 लाख रुपए जीएसटी बच रहा है, तो शायद इस अकेले इनपुट से वो साल का 8 लाख 10 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो आप इतना कुछ है जो आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। होता क्या है ना, जो चीज़ मुझे बहुत नेचुरली आती है, जैसे एज अ लॉयर आपको जो चीज़ें बहुत नेचुरली आती होंगी, आपको लगता होगा ये सबको पता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, जो आपके कंटेंट के माध्यम से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो टुडेज सेल्स आर प्योरली बेस्ड अपॉन हाउ मच एजुकेशन कैन यू प्रोवाइड टू पीपल। ओके, सो आप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाइए, आप एजुकेशनल कंटेंट बनाइए। एंड क्या आपको लगता है जो कंटेंट प्रोफेशनल, जो एक प्रोफेशनल कंटेंट बना रहा है वर्सेस जो नहीं बना रहा, डज मेकिंग द कंटेंट मेक इट द डिफरेंशिएटर फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा चल रहा है? 100%. इफ़ यू आर गुड एट योर क्राफ्ट एंड यू पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट योर क्राफ्ट, देन एक्चुअली आप कितने भी अच्छे हो या नहीं हो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। इफ़ यू आर गुड एट योर क्राफ्ट एंड पीपल नो अबाउट यू, दैट इज़ वॉट मैटर्स। और एक और भी क्वेश्चन था आपका, वो भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। अगर कोई भी बायर, कोई भी बिजनेस ओनर सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स का ध्यान रखे, उनको जो आपने सर्विसेज कमिट करी हैं वो फुलफिल करें, बियॉन्ड जाएं, उनसे बात करें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, एड ऑन्स उनको कुछ और दें, आपका बिजनेस अपने आप ही स्काई रॉकेट करेगा। बिकॉज वो लोग दोबारा आएंगे, रिपीट परचेज होगा। रिपीट परचेज का मतलब होता है कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगेगा आपका दोबारा से, और वही लोग आपको रेफर भी और लोगों को करेंगे, तो आपके पास नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं, वो लोगों को भी आपको अक्वायर करने के लिए पैसा नहीं देना। तो पहली चीज़ तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कमिट करा उसको फुलफिल करो। अब अगर किसी को लगता है अरे सर आप तो बहुत ज्ञान दे रहे हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने कंज्यूमर्स को ध्यान रखो। इफ़ यू हैव हैप्पी कंज्यूमर्स, उससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती ना। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा यहाँ पे। एक हमारा बिजनेस ग्रोथ प्रोग्राम होता है जिसकी फीस 4 लाख प्लस जीएसटी होती है। हमारे एक मेंटी थे जो बहुत सक्सेसफुल हुए थे हमसे सीखने के बाद। फिर हमारी एक और प्रॉस्पेक्ट से बात हो रही थी। सो वन ऑफ माई सेल्स टीम पीपल वर टॉकिंग टू देम, तो उन्होंने बोला कि उनका नाम है, जिन्होंने बात हो रही थी, डॉक्टर गायत्री नाम है उनका। बिल्कुल। उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर सुमित्रा है जिनको मैं जानती हूँ। तो व्हाट माय सेल्स टीम मेंबर डिड वाज, उन्होंने बोला मैं डॉक्टर सुमित्रा जी को भी कॉल पे ले लेता हूँ। तो कॉल पे कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात करी। उसने बोला अब एक काम करते हैं, हो सकता है आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहो जो आप मेरे सामने ना पूछ पाओ, तो एज अ सेल्स पर्सन मैं इस कॉल से हट जाता हूँ। एंड देन आर एग्जिस्टिंग बायर, आर एग्जिस्टिंग मेंटी, शी कन्विंस द अदर पर्सन फॉर 1 hour एज टू वाई दे शुड एनरोल फॉर माई मेंटोरिंग प्रोग्राम। आप सोचो ना, एक बंदा हमारे काम से इतना ज़्यादा खुश है कि वो दूसरे बंदे को कन्विंस कर रहा है कि अरे मैं गारंटी लेती हूँ तू इस प्रोडक्ट का पार्ट बन, एंड दे आर टेकिंग आउट 1 hour फ्रॉम देयर लाइफ टू कन्विंस द अदर पर्सन। अगर आपके बिजनेस में आप इस लेवल तक जाके अच्छा काम कर सकते हो, फिर आपके लिए रिजल्ट 100% आएंगे। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें अपने लिए बना पाना, आपका इंटेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम गोवा में इवेंट कर रहे थे 2020 में। हमने उस समय तक हमें ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। मैंने कोचिंग की जर्नी भी 2018 में शुरू करी थी। हमने गोवा का जो सबसे बड़ा स्टेडियम था वो बुक कर दिया था 5000 लोगों का। हम 1800 से ज़्यादा टिकट सेल कर चुके थे। फिर कोविड आ गया। तो भाई कोविड में आप इतना बड़ा इवेंट तो नहीं कर सकते। अब वो इवेंट 1 साल डिले हुआ, 2 साल डिले हुआ, 3 साल डिले हुआ। फिर फाइनली 2023 में जाके जनवरी में हमने वो इवेंट करा न्यू दिल्ली में। वो जो सेम इवेंट जो 2018 में कर रहे थे। और आपको पता है इस पूरे दौरान हमसे सिर्फ 3% लोग थे जिन्होंने रिफंड मांगा था। ऐसा भी नहीं बोला लोगों ने कि सर आप पैसे अभी दे दो, जब आगे इवेंट करोगे हम वापस कर देंगे। लोगों का था सर आप ही के पास तो हमारे पैसे पड़े, आप जब भी इवेंट करोगे हम आ जाएंगे उसमें। ये मुझे लगता है मोर देन माई फॉलोअर्स और एनीथिंग एल्स, ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। इससे बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, इस लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट कैसे कोई बनाए? मेरा जो पहला मेंटोरिंग प्रोग्राम था उसकी फीस 6500 रुपये थी। मैंने लोगों को कमिट करा था कि मैं आप लोगों को 24 लाइव सेशंस दूंगा। मैंने लोगों के लिए 350 लाइव सेशंस करे थे हर हफ्ते। व्हेन यू कमिट दैट यू आर गोइंग टू डू 24 सेशंस, बट यू डू मोर देन 300 सेशंस फॉर देम। एंड हर सेशन के लिए लोगों के पास, जैसे कोई बंदा कॉलेज में पढ़ता है, मेरे को कॉलेज से थोड़ी ना मैसेज आता है कि क्लास स्टार्ट होने वाली है, ज्वाइन कर लो। मेरे हर वीकली सेशन के लिए 10 रिमाइंडर्स जाते थे लोगों के पास, फेसबुक ग्रुप में, मेल पे,
और मैसेज के तौर पे। उस समय व्हाट्सएप इतना नहीं था, अब तो व्हाट्सएप पे जाते हैं, मैसेजेस में जाते थे। अगर एक बंदे के लिए यार मैंने 350 सेशन करे हैं, 1000 घंटा में उनके सामने लाइव जाके मैंने उनको पढ़ाया है, इट रिक्वायर्स एफर्ट फ्रॉम योर साइड टू गेन दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट। तो इससे जो मुझे समझ आ रहा है एज अ लिसनर कि आप बहुत गिविंग में बिलीव करते हैं। एंड मैंने लाइफ में जितने लोगों को देखा है, आई पुट देम इनटू 2 बकेट्स। एक गिवर्स होते हैं और दूसरे टेकर्स होते हैं। टेकर्स जो वही माइंडसेट से होते हैं कि पहले दे आर ऑलवेज थिंकिंग मुझे क्या मिलेगा, राइट, एंड दे कंडीशन देयर गिविंग बेसिस दैट। जो आपके एग्जाम्पल से मुझे लग रहा है, एंड आप प्लीज़ इस पे और थोड़ी सी लाइट शाइन करिए, दैट गिविंग, अगर आप इतनी गिविंग करने लग जाओ कि जो दूसरी की एक्सपेक्टेशन है उससे आप डबल ट्रिपल करने लग जाओ गिविंग, देन नेचुरली उस इंसान को आप पे ट्रस्ट होगा ही होगा। तो इसमें आपकी फिलॉसफी क्या है, बिजनेस फिलॉसफी? यार मुझे लगता है ये मेरे बिजनेस फिलॉसफी से ज़्यादा इट्स अ वे आई लिव माई लाइफ। मैं एक बार हैदराबाद में था, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मेरे को याद आया। तो हम एक बार हैदराबाद में थे, तो वहाँ पे हम लोग जब खाना वाना खाया, हमने एक आधी चीज़ ली होगी, पास्ता वगैरह समथिंग, इटालियन रेस्टोरेंट था। तो मेरा बिल 500-550 रुपये था। जब मैं बाहर निकल रहा था, वहाँ पे जो अंकल थे काफ़ी बुजुर्ग से थे, तो मैंने मेरे पॉकेट में हाथ डाला, मेरे पास एक 2000 रुपये का नोट था, मैंने उनको दे दिया। और ऐसा बहुत बार हो चुका है कि मैं ये चीज़ आपको बता भी रहा था, आई कीप मनी इन माई पॉकेट विच इज़ मेंट ओनली टू बी गिवन अवे, बट दैट इज़ अ वे हाउ आई लिव माई लाइफ एंड आई हैव कंडीशन थिंग्स अराउंड इट। क्योंकि मुझे सक्सेस मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो आई वैल्यू एवरी पेनी दैट पीपल इन्वेस्ट विद मी। मैंने आपको बोला यार, आप समझो मेरी बात, मैं 500 रुपये अगर महीने पे हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, तो अगर एक बंदा मेरे संग 6500 रुपये भी मुझसे सीखने में इन्वेस्ट कर रहा है, दैट वॉज माई इनकम फॉर, हाँ, एक मंथ नहीं, जितना भी लंबा प्रोग्राम है, सो दैट वॉज माई इनकम फॉर 13 मंथ्स। तो मुझे ये लगता है यार, ये पैसे कमाने में उस बंदे ने बहुत मेहनत करी होगी, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जितना भी वो मुझसे उम्मीद करता है उससे बहुत ज़्यादा उसको दूँ। And that has become a part of what I do, and that has become a part of the things that even my team members do. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमारा अहमदाबाद में इवेंट हो रहा था, हमारे एक स्पीकर थे जिनको हमने यूएस से इन्वाइट करा था, सो वी वर सपोज टू फेलिसिटेट हिम ऑन द स्टेज। आई इमीजिएटली सॉ कि उनके पापा चलते हुए आ रहे हैं, एंड हिज फादर वुड बी लाइक लेट 70s में होंगे। तो मैंने इमीजिएटली मेरे टीम मेंबर को देखा, मैंने उन्हें बुलाया, मैंने कहा इनको, इनके पापा को बुलाइए स्टेज पे फेलिसिटेट करने के लिए। इट टुक मी जस्ट अ स्प्लिट सेकेंड टू डू दैट। और मेरे टीम वालों ने बोला सर ऐसी चीज़ें ना आप ही कर सकते हो, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और आप एकदम से ये सारी चीज़ें बदल भी सकते हो। क्योंकि मुझे पता था वो बहुत अच्छे सीजन्ड एंटरप्रेन्योर हैं, जनक मेहता नाम है उनका, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी में आज तक नहीं हुआ था कि वो अपने होम टाउन में बोल रहे हैं। और अगर होम टाउन में नहीं बोल रहे तो ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था कि उनके पापा ने उन्हें स्टेज पे सम्मानित करा होगा। आई कैन गिव हिम एक्स अमाउंट ऑफ मनी, बट दिस मोमेंट इज समथिंग दैट ही विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि यार आपके पास एक तो अंदर से आती है, आप डेवलप भी करते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा दैट माई ड्राइव वॉज नॉट मनी, वन पार्ट ऑफ इट वॉज ऑफ कोर्स मनी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मनी हैज़ बिकम अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एडिंग वैल्यू। एंड दिस इज नॉट जस्ट विद मी, any successful organization, entrepreneur would be giving more than what they would be taking, and that is the reason why they are successful. It is as simple as that. ये जो आपने गिविंग के बारे में बोला, ये आपने कहाँ से सीखा? किसी को देख के? फैमिली वैल्यूज़ थी? यार मैं जब छोटा था, आई यूज्ड टू लिव विद माई ग्रैंड पेरेंट्स, सो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर माई ग्रैंड फादर, बिकॉज मैंने जो भी चीज़ें अचीव करी उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो मुझे रोज़ सेंटेंसेस देते थे, हिंदी में इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इंग्लिश वाले हिंदी में कन्वर्ट करो। एट द सेम टाइम आई हैड अ स्टेप ग्रैंड मदर, सो आई डोंट टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट आई वॉज डिप्राइव्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट एनी किड वुड हैव। और स्पेशली मैं इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बात नहीं करता, मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं तो उनको बुरा लगता है, पर अब ठीक है, वो फेस था, चला गया। तो व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, देन यू वांट टू गिव इट टू अदर पीपल। आई टॉक सो मच टुडे, बट जब मैं स्कूल में था मैं बहुत चुप रहता था। तो अगर अभी मेरे इवेंट में कोई बंदा है जो बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है, आई सी माई सेल्फ इन दैट इंडिविजुअल, और मुझे लगता है अगर मैं इसको एम्पावर कर ले जाऊँगा तो मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊँगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, लाइक मैं हूँ, सौरभ है, इट टुक अस 5.5 years टू बिकम सक्सेसफुल। सिर्फ 5.5 years उस जोन से बाहर निकलने में बोलूँगा। सक्सेसफुल की तो कोई लिमिट नहीं होती। अगर ऐसे हम बहुत सारे और राहुल और सौरभ की मदद कर पाएँ जिनके पास एबिलिटी तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज़ यार, भगवान मुझे लगता है कि यार कम लोगों को चुनता है इन सब अच्छे कामों के लिए, तो अगर हमें चुना है तो हमें जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उतना करना चाहिए। हमने अभी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात किया, एंड यू डील विद अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। व्हाट इज़ द नंबर वन मिस्टेक दैट यू सी देम मेकिंग टुडे? नॉट बीइंग कंसिस्टेंट।
आप कंसिस्टेंसी को आप थोड़ा डिफाइन आप करिए। किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, आपको लंबे समय तक उस क्षेत्र में काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। ये एक पोस्ट था जो मैंने देखा था एलेक्स हरमोसी का। मैं एग्जैक्ट नंबर शायद ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसने ये बोला था कि अगर आप 25 पॉडकास्ट कर लेते हो ना, आप टॉप 90% पॉडकास्टर्स में आ जाते हो। कि जो लोग पॉडकास्टिंग शुरू करते हैं 25 वीडियोज़ भी नहीं बनाते हैं। मैंने कहा यार इतना, मैं अभी भी ये चीज़ बोलता हूँ, आज के टाइम पे सक्सेसफुल होना इतना आसान है। मतलब आज की डेट में जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम आज करीब 5 वीडियोज़ या 6 वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे। हो सकता है मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊँ, मैं 2 दिन के अंदर 20 वीडियोज़ बना सकता हूँ। मेरे ऑफिस में जब लोग आते हैं, वी हैव आवर मेंटीज जिनको हम हमारे ऑफिस में लोकेशन देते हैं और टॉपिक्स देते हैं। दे मेक मोर देन 100 वीडियोज़ इन अ डे। सो वी क्रिएट एन एनवायरनमेंट लाइक दैट कि ये आपको आज बना के लेके जाना है, तभी आपको राहुल के संग अगला सेशन मिलेगा। आप समझ गए? तो सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। हमारे संग प्रॉब्लम क्या है? वी टेंड टू एक्सपेक्ट रिजल्ट्स टू कम टू अस वेरी सून, इवन बिफोर वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स टू गेट दोज रिजल्ट्स। वहीं पे ही हम लोग अटक जाते हैं। देखो, आप कोई भी काम पहली बार कर रहे हो ना, अब जैसे आप यहाँ पे कैसे आए? आप बाइक से आए, कार से आए? हाउ डिड यू कम? बाय कार। अब बाई कार आए। तो आप जब गाड़ी पहली बार चला रहे होंगे, जब मैंने पहली बार गाड़ी चलाई थी, मुझे था यार ये चीज़ चलेगी कैसे भाई? इसमें एक एक्सीलरेटर है, एक ब्रेक है, एक क्लच है, मुझे सामने भी देखना है, मुझे गियर भी बदलना है, मुझे पीछे भी देखना है, मुझे साइड मिरर में भी देखना है, मुझे इधर भी देखना है। मैंने कहा यार 2 हाथ 2 पैर है, ये सब कैसे होगा? लेकिन अभी तो हम फोन पे बात करते करते भी कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। हमारे स्पीड ब्रेकर आते हैं तो हम सोचते भी नहीं है। मेरी प्रोग्रामिंग हो गई है मेरी बॉडी की, ऐसे चलता है, बिकॉज वी हैव बिकम हैबिचुअल टू इट। सो वन थिंग विच वॉज सो वेरी डिफिकल्ट दैट इट सीम्ड इम्पॉसिबल है, यार ये मुझसे नहीं होगा, स्पेशली अगर ऑटोमेटिक नहीं, अगर आपकी मैनुअल गाड़ी है, अभी आप बहुत आसानी से कर ले जाते हो बिकॉज यू हैव डन इट सो मेनी टाइम्स। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बॉडी का वो पार्ट बन चुका है, आपकी लाइफ का वो पार्ट बन चुका है। मैंने 1500 सेल्स वेबिनार्स करे, मैंने 10,000 वीडियोस बनाए। सो इफ यू हैव डन समथिंग 10,000 टाइम्स, आई बिलीव यू विल ऑटोमेटिकली बिकम वेरी गुड एट इट। बट दैट्स व्हाट पीपल आर नॉट विलिंग टू डू यार। हमारे जब इवेंट्स होते हैं, देयर हैव बीन इवेंट्स, स्पेशली राइज एंड शाइन इवेंट होता है मेरा, वो 50 घंटे चलता था इंक्लूडिंग द स्लीपिंग टाइम। उस 50 घंटे में मैं 42 घंटे बोलता था, सोने के टाइम के साथ बोल रहा हूँ, यानी 8 ही घंटे सोते थे हम उसमें। अभी हमने उसको थोड़ा कम करा, इट्स नॉट गुड फॉर माई बॉडी ऑल्सो। और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो तो बेचारे भिज जाते थे, सर क्या करा रहे हो आप हमारे संग? बिजनेस इवेंट सोच के आए थे, आर्मी ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे तो हमारी। आप वो सारी चीज़ें तभी कर सकते हो ना जब आपने वो एबिलिटी डेवलप करी है। अदरवाइज इतने घंटे कैसे बोल सकते हो आप यार? इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, राइट? खड़े होके बोलना। आप जब एक काम को बार बार करते हो तो आपका माइंड, आपकी बॉडी, जैसे आप जिम जाते हो आपको देख के लगता है, राइट? आप जितने वेट्स अभी उठाते होंगे, जितनी बार एक एक्सरसाइज करते होंगे, पहले दिन तो नहीं कर सकते थे ना, अभी बहुत इजीली करने लग गए हो। दैट इज द सेम यार, इट्स लाइक डेवलपिंग अ मसल। द मोर यू डू इट, द मोर इफेक्टिवली यू आर गोना डू इट। बट दैट्स व्हाट पीपल आर नॉट विलिंग टू डू। एंड उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी ऑन द इंटरनेट इज रिच। तो लोग जब दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं ना अपनी लाइफ को, तो उनको लगता है यार मैं कुछ सब्सटैंशियल कर नहीं रहा हूँ। ये वाली चीज़ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है यार। तो आप यही बोलेंगे सबको, अगर आप एडवाइस भी करेंगे कि इतना मिनिमम एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा बिफोर यू क्विट, बिकॉज अगर आपने उस एफर्ट से पहले क्विट कर दिया तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी गोल्ड माइन 2 फीट दूर थी या 20 फीट दूर थी। और वो मिनिमम एफर्ट का यार कोई टाइमलाइन डिफाइंड नहीं है, वो डिफरेंट ही होगा हर लोगों के लिए यार। बिल्कुल। अगर एक बंदे का वजन 100 किलो है, उसको 60 किलो वजन करना है, तो ऑब्वियसली जिस बंदे का वजन 80 किलो है, अगर दोनों सेम एफर्ट डाल रहे हैं तो 80 वाला वहाँ जल्दी पहुंचेगा ना यार। तो आप उसके संग तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, और उसके पास वो रिजल्ट 4 महीने में आ गया, मेरे को इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो आपका देखो, आपने अपना एक डायरेक्शन बनाया और आपने अपना एक टारगेट बनाया। आप अपने टारगेट को चेंज नहीं करोगे, आप अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। मे बी आपको रियलाइज होगा यार ये तरीका मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है, तो मैं अपने तरीके को चेंज करूंगा। I would take more coaching, I would take more inputs, I would understand that I need to do something different, but you will not lower down your target. Correct. And at the same time, you should be willing to put in the amount of effort that is required. और मैं ना देखो, मैं इसका एक आपको ना रियलिस्टिक एग्जाम्पल भी देता हूँ। जब लोग मेरे इवेंट्स में आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई एक डायरी पेन निकालो, इस डायरी पेन में लिखो कि पिछले 5 सालों में आपने कितनी सब्सटैंशियल प्रोग्रेस करी है, इकोनॉमिकली, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, लिखो। एंड देन आई गिव देम टाइम, 15-20 मिनट, सब लिख लेते हैं। उसके बाद जब मैं उन्हें कोई काम करने को बोलता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ कि कितना टाइम आपको लगता है आपको इसमें लगेगा, तो कोई बोलता है 1 साल 2 साल। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको क्या लगता है 2 साल बड़ा टाइम है, लंबा टाइम है? लोग बोलते हैं सर लंबा टाइम तो है। देन आई टेल देम गो बैक टू दैट शीट एंड सी हाउ मच प्रोग्रेस यू हैव मेड इन द पास्ट 5 years. नाउ यू टेल मी कि 2 साल लंबा टाइम है या कम टाइम है। सो देन दे गेट दैट इनटू देयर हेड, यार सर 5 साल में ज़्यादा प्रोग्रेस तो नहीं करी है, तो 2 साल तो ये काम करना मतलब बहुत आसान हो जाएगा। सो टिल द टाइम यू डोंट मेक पीपल रियलाइज, तब तक वो लोग उस चीज़ को ना तो अग्री करेंगे ना ही एफर्ट डालेंगे।
और उनको रियलिस्टिक असेसमेंट भी नहीं पता नहीं होगा चलेगी। कभी। बट आपको सुन के राहुल, क्वाइट फ्रैंकली मुझे लग रहा है कि आपको हार्ड वर्क करने में घबराहट नहीं होती। तो ये जो वर्क एथिक है, आप शुरुआत से ही ऐसे थे या फिर आपने ओवर द इयर्स अपनी वर्क कैपेसिटी बिल्डअप की है? यार जब मैं 30 साल का था, 30.5 साल बोलो 30.5 years, that was the time when I actually got substantial results for me. So when you have been waiting for success for such a long period of time, your appetite for success becomes so huge that the amount of effort that you are putting in, it does not come across as hard work. वो लगता ही नहीं हार्ड वर्क जैसा। एक दिन मैं एक लाइव यूट्यूब पे लाइव कर रहा था, रात को करीब 1:30 बज रहे थे। तो किसी ने मेरे लिए कुछ नेगेटिव लिखा, तो माई टीम मेंबर्स गॉट अपसेट, सर ऐसा लिख रहे हैं। मैंने कहा भाई एक समय था जब लोग मेरे को जानते नहीं थे, पूछते नहीं थे। अभी एक बंदा रात को 1:30 बजे मेरे बारे में बात कर रहा है, ये सक्सेस है, समझो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो आई लुक एट थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और दूसरी चीज़ यार देखो, यू कैन नॉट डिफीट एन इंडिविजुअल हु इज हैविंग फन। सो व्हेन आई डू माई इवेंट्स, आई एम हैविंग फन। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम हैविंग फन। तो फिर तो आपको वो काम जैसा लगता भी नहीं है ना यार, ये चीज़ है। और एक और भी बात है यहाँ पे, देखो अब ये मेरे लिए चलो ये चीज़ फिट बैठ जाती है, बाकी लोगों के लिए कैसे होगा? When you know the end outcome of what you are doing is going to be so beautiful, then you would be more than willing to put in the effort that you are doing today. अभी a few days back मैं पेरेंट्स के संग था, so we were out of India for 10-15 days. I booked one of the costliest hotels for my parents. एंड अगेन आपका ना जब अच्छा नेचर होता है ना, आपको लोग भी अच्छे मिलते हैं। तो मैंने जो रूम बुक करा था, मैंने उनको मैसेज डाला दैट माय पेरेंट्स आर कमिंग एंड आई वुड लाइक टू हैव एन अपग्रेड। तो उन्होंने हमको जो हमारे रूम था उससे 3 गुना बड़ा अपग्रेड करके एक बहुत बड़ा स्वीट दे दिया था। तो जब हम अंदर एंटर करें, जैसे जितना बड़ा ये हमारा पूरा पॉडकास्टिंग स्टूडियो है, ये अकेला नहीं, सारे मिला के इतना लंबा रूम था वो। मॉम डैड वर वेरी वेरी हैप्पी, वहाँ पे वो गए। तो in order to give those experiences to your parents, if that requires me to put in 5 hours of extra effort, यार why will I even think twice to do that? और दूसरा, आपको ना एंड गोल जब पता रहता है, गोल से ज़्यादा ये बोलूँगा कि आपको जब पता रहता है कि यार आप जब अचीव करोगे तो आप इतना सब कुछ अच्छा अचीव करोगे, उसके बाद फिर आपको हार्डवर्क करने से मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में थोड़ा और समझना है। 30.5 years में ऐसा क्या हुआ जिससे आप डबल सीरियस हो गए? ऐसा हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगा डबल सीरियस हो गए, मैं ये बोलूँगा कि एफर्ट तो हम उससे पहले भी डाल रहे थे, लेकिन उस एफर्ट में हमें टैंजिबल आउटकम नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मेरे को टैंजिबल आउटकम मिलने लग गया, तो जो हमारा अमाउंट ऑफ एफर्ट था वो, यार देखो मल्टीप्लाई तो मैं नहीं बोलूँगा, उसको करा हमने, क्योंकि जब मैं देहरादून में था, जब हम पैसे नहीं भी कमाते थे तो भी हम एफर्ट तो उतना ही डालते थे। जस्ट दैट नाउ वी स्टार्टेड गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर दैट। जैसे मैं देहरादून में इवेंट करता था, सर्वाइवर नाम था उस इवेंट का। उस इवेंट में भी हम 13-14 घंटे एक दिन में काम करते थे, लेकिन उसके बदले में मैं पैसे इतने नहीं कमाता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम माई वर्क एथिक्स, माई एग्जाम्पल्स, everything remained the same, just that my audience changed, the quality of the audience changed, the paying capacity of the audience इसको changed. थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं। हाँ, आप बोल रहे हो कि आपका काम सेम था, आपका वर्किंग आवर्स सेम थे, आपके काम करने का तरीका भी सेम था, बट आपकी ऑडियंस चेंज होगी। इसका क्या मतलब कि आपने डायरेक्शन चेंज किया? आपने I took a lot of my content online. I started doing webinars. So when you do webinars, you are not confined to your own hometown. तब तो आप किसी को भी कहीं पे भी केटर कर सकते हो। बिल्कुल। तो जब मैं वेबिनार्स करने लग गया, आई स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन कोचिंग। उससे पहले अगर मैं कम्युनिकेशन के सेशंस करता था, मैं किसी कॉलेज में जाता था या किसी कॉर्पोरेट में जाता था, तो मुझे वो सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट वॉज डिपेंडेंट अपॉन द अप्रूवल ऑफ अ हायर अथॉरिटी। वहाँ पे प्रिंसिपल साहब बोलेंगे तो मिलेगा, मैनेजर जी बोलेंगे तो मिलेगा। आई वॉज लाइक यार, इफ आई एम गुड इनफ, आई वुड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी माई सेल्फ। तो हमने एड्स रन करने शुरू करे, हमने वेबिनार्स करने शुरू करे। पहला वेबिनार जो मैंने करा था, उस वेबिनार में मेरा एड बजट 1500 रुपये का था। हमने 100 लीड्स जनरेट करी थी, 45 लोग मेरे वेबिनार पे आए थे, 2 लोगों ने मेरे प्रोडक्ट में एनरोल करा था, 13,000 रुपीज़ का रेवेन्यू आया था। तो मेरे लिए तो था यार दिस इज समथिंग दैट कैन बी स्केल्ड। And then I started doing multiple webinars. उसके बाद there was no looking back. So whatever money we earned, we reinvested all of that back into my business. अब इससे हुआ ये कि मैं दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा मेरे रिजल्ट्स के लिए। और दूसरी चीज़ यार, जब आपके पास रिजल्ट्स आते हैं तब तो आप और ज़्यादा एफर्ट डालते हो ना। ये 2018 में हुआ। 2019 में हमने गोवा में एक इवेंट करा था जिसमें अराउंड 550 लोग आए थे। एवरीबडी वॉज लाइक, राहुल टिकट प्राइस आपका थोड़ा ज़्यादा है, 16,000 का है, लोगों को गोवा ट्रैवल भी करना है, होटल में भी रुकना है, पीपल विल नॉट पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। आई लाइक हो जाएगा, आई डू इट, आई मेक इट हैपन। वी गॉट मोर देन 500 पीपल। व्हेन दोज 500 पीपल केम टू दैट इवेंट, आई लिटरली न्यू द नेम्स ऑफ मोर देन 400 पीपल ओवर देयर,
क्योंकि वो ना वीडियोस बना के डालते थे मेरे फेसबुक ग्रुप में, मेरे कम्युनिकेशन कोचिंग प्रोग्राम। तो मुझे लोगों के नाम पता थे, पूरे नाम और सरनेम, जैसे आयुष पराशर ऐसे करके नाम है हर बंदे का, मुझे पूरा नाम। पीपल वर ब्लोन अवे यार, सर आपको 400 लोगों के नाम याद है, आपको ये याद है उन्होंने कब एनरोल करा था, आपको ये याद है उसने किस मोड से पेमेंट करा था। वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ दैट माई प्रेजेंस इन दीज पीपल लाइव्स मीन्स सो मच टू देम। उसके बाद जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो मनी से तो बहुत ही ज़्यादा बदल गया था, क्योंकि उससे पहले तो आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, लेकिन जब आप लोगों से रियल मिल रहे हो। उसी दिन मेरा ना बर्थडे भी पड़ा था लास्ट डे पे, मेरे पास 100-150 से ज़्यादा गिफ्ट थे जो लोग लेकर आए थे, हैंड रिटन नोट्स थे जो लोगों ने दिए थे। लोगों ने बताया था कि सर आपके आने की वजह से मेरी लाइफ कितनी बदली है। मैं एक हफ्ते में एक सेशन करता था उनके लिए, लोगों ने बताया वो उस पूरे हफ्ते का हमारा सबसे अच्छा समय होता है। तो जब वो सारी चीज़ें पता चली तो आपको समझ में आया यार आप जो कर रहे हो ना वो तो पैसों से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। उसके बाद से जो एफर्ट्स हैं आई बिलीव वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए। तो नॉर्मली कहते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक बहुत लो पॉइंट आता है, तो शायद आपका लो पॉइंट था जब आप बोल रहे थे आप 500 रुपीज़ अ मंथ पे कर रहे थे। उससे भी ज़्यादा अलॉन्ग विद द मनी इट वॉज लाइक व्हेन यू गो बैक होम, यू हैव योर पेरेंट्स एंड वो देखते हैं, उनको दिख रहा है कि यार आपका बच्चा संघर्ष कर रहा है, उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो चीज़ आपको और ज़्यादा दुख देती है कि यार मैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। आपको सेल्फ डाउट आया उस टाइम कि बहुत क्या मैं सही कर रहा हूँ, यार जॉब ना कर लूँ, बाहर चले जाऊँ जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं? बहुत बार आया था, आई विल नॉट लाई, बहुत बार ऐसा आया था। फिर आपने कोप कैसे किया? आई डोंट नो ऑनेस्टली। मुझे लगता है कि मैं और मेरे भाई साथ में थे तो एक वो एनर्जी मिलती है। दूसरा आई बिलीव दैट आई एम बिल्ट लाइक दिस, क्योंकि मुझसे अभी भी कोई पूछता है तो मुझे अब लगता है यार वो सच में मुश्किल था। उस समय नहीं लगता था व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट, पर अब लगता है यार वो तो सच में मुश्किल था दौर बहुत ज़्यादा। एक बारी मैं और भाई थे, हम लोग सड़क पे वॉक कर रहे थे, मैं रुका, मैंने कहा भाई यार हमने कैसे काटा वो समय यार, क्योंकि आप सुनने में भी लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। अभी आप जोमेटो पे एक चीज़ ऑर्डर करने जाते हो उससे ज़्यादा पैसे तो एक बारी में लग जाते हैं अभी यार। तो तब लगता था कि यार, लेकिन मुझे ये लगता था कि आई वॉज सो पैशनेट दैट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम मनी कितना आ रहा है क्या आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता था, प्लस वी वॉन्टेड टू प्रूव आवरसेल्व्स। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पुश करती है। लेकिन आप समझो ना, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन बताना ज़रूरी है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो भी मेहनत कर रहे हैं और वो ज़िंदगी भर उतनी मेहनत करते रहेंगे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं बनेंगे जब तक वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। और वो सारे जो लोग हैं उनको पता भी नहीं है अंदर से कि यार जो मैं कर रहा हूँ ये आगे चल के मेरे को इतना प्रॉफिट या इतनी ग्रोथ नहीं देने वाला है। तो आपने एक डायरेक्शन का एग्जांपल दिया कि जब आप ऑनलाइन शिफ्ट हो गए, जो कोई सुन रहा है हमें या फिर जैसे मैं हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि राहुल जी मेरा डायरेक्शन गलत है, मुझे बी फॉलो नहीं करना चाहिए, मुझे ए फॉलो करना चाहिए? वो हमें कैसे पता चलेगा? आप जो भी काम कर रहे हो, आप उस काम में आपके पास क्या एंड आउटकम हो सकता है वो लिखो। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप अपने सिटी में काम कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है। अगर एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट में 50 लोगों को वो बिठा सकता है, ऑनलाइन एक लेवल से ज़्यादा सेल नहीं कर सकता, तो यानी कि आपका मॉडल स्केलेबल नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं अगर वेबिनार करता हूँ, मैं वेबिनार में 200 लोगों को भी बिठा सकता हूँ, 2000 को भी बिठा सकता हूँ, 5000 को भी बिठा सकता हूँ। 200 से 5000 लोगों को मेरे वेबिनार में लेकर आने के लिए मेरे एड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, मेरा शायद जूम अकाउंट के लिए थोड़ा पेमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन वो करना 50 लोगों के रेस्टोरेंट को 500 लोगों के रेस्टोरेंट करने जितना मुश्किल नहीं है। उतना टाइम, एनर्जी, एफर्ट और मनी नहीं लगने वाला। तो पहली चीज़ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्केलेबल है या नहीं है। अगर वो स्केलेबल ही नहीं है तब तो आप कितनी भी मेहनत कर लोगे वो बढ़ेगा नहीं ना यार। तो आप डायरेक्शन में आप बोलोगे सबसे पहले स्केलेबिलिटी असेस करें। तो फॉर समवन जो 17 या 18 ईयर्स का है, लेट्स अज्यूम उनको स्केलेबिलिटी नहीं पता फ्रॉम स्क्रैच, स्केलेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी आपके वे में, जो आप एक्सपीरियंस से आपने गेन किया है? आपका जो प्रोडक्ट है, क्या आपके प्रोडक्ट को मल्टीपल लोकेशंस पे सेम अनुभव यानी सेम एक्सपीरियंस के संग लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? वो चीज़ डिफाइन करती है कि आपका प्रोडक्ट स्केलेबल है कि नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हो, मैं देहरादून में बैठ के इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, प्रोडक्ट इज द सेम, एक्सपीरियंस इज द सेम। बिल्कुल। आप यूट्यूब दिल्ली में बैठ के कर रहे हो या सिंगापुर में बैठ के कर रहे हो, एक्सपीरियंस इज द सेम। आप KFC का खाना देहरादून में खा रहे हो या फिर थाईलैंड में बैठ के खा रहे हो, एक्सपीरियंस इज द सेम। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि सेम एक्सपीरियंस, नॉट सिमिलर, सेम एक्सपीरियंस आपका लोगों को हर जगह पे मिल सकता है तो आपका प्रोडक्ट स्केलेबल होगा? नहीं मिल सकता है तो आपका प्रोडक्ट स्केलेबल नहीं होगा। बहुत सारे उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब अगर मेरा वेबिनार कोई इंडिया में या दुनिया भर में कहीं पे भी बैठ के अटेंड कर रहा है, देयर एक्सपीरियंस रिमेन्स द सेम, सो दैट इज व्हाई दैट प्रोडक्ट इज समथिंग दैट कुड बी स्केल्ड। तो नेचुरली फिर देयर विल बी सम प्रोडक्ट्स और मे बी सम इंडस्ट्रीज आल्सो जो शायद स्केलेबल नहीं है करंटली।
एंड दैट इज द रीजन, मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जब मैं मेरा बिजनेस कोचिंग करता हूँ, देयर आर सर्टेन इंडस्ट्रीज होम वी डोंट केटर टू. अब जैसे किसी का जिम है और उनके जिम में 200 लोग आते हैं और उनके जिम की कैपेसिटी 400 के ऊपर नहीं जा सकती है, तो मैं उनको मेरे मेंटोरिंग प्रोग्राम में, जहाँ पे मैं 1-to-1 एक्सेस देता हूँ, मैं नहीं लूंगा अनलेस द ओनर ऑफ दैट जिम इज रेडी टू गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट विद एन ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम फिटनेस का. बिकॉज अदरवाइज देखो, अगर उनका रेवेन्यू अभी 10 लाख है तो मेरे इनपुट्स के बाद भी वो 20 लाख के ऊपर नहीं जा सकता एक महीने में, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसमें. तो वो उस बिजनेस के संग मैं वर्क नहीं करना चाहूंगा. बट आई वुड गिव देम अ डायरेक्शन, take your coaching online, work with business owners who have the higher paying capacity but they don't have the time to go to a gym, give them personalized sessions, they would be ready to pay you more. And because your horizons would expand, क्योंकि अब तो आप वर्ल्ड वाइड काम कर सकते हो ना. वर्ल्ड वाइड तो चलो बाद में चाहोगे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी होता है, इंडिया में तो काम कर ही सकते हो, तो अब आप ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो. तो जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेस ओनर ओपन है नए आइडियाज़ को सुनने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी, वही ग्रो कर पाता है यार. तो आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में सबसे हाई पॉइंट क्या होगा? यार मेरे, अगर आप हाई पॉइंट बोलोगे, वो ये होगा कि मेरे काम की वजह से एक ये चीज़ मैं चाहता हूँ, अगर हम 5,000 ऐसे और लोग क्रिएट कर पाएँ जो जिस तरीके का काम मैं कर रहा हूँ वो भी करेंगे, देन आई फील यार हमने कुछ काफ़ी अच्छा करा है. अच्छा किया. एंड अगर मैं मॉनेटरी में बात करूँ, अगर आपका लोएस्ट पॉइंट था 500 रुपीज़ पर मंथ, तो आज की डेट में हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा है? मे बी मंथ या डे या एनुअली? मैं मॉनेटरी एंगल से अगर देखूँ, सो देयर हैव बीन डेज जहाँ पे हमने एक दिन में, अगर हमारे इवेंट्स की हम बात करें, वी हैव जनरेटेड मोर देन 1 crore रुपीज़ इन अ डे ऑल्सो. और हमारे इवेंट में भी डॉक्टर वेलुमनी आए थे, तो डॉक्टर वेलुमनी जी ने एक बात बताई थी कि मेरे को एक 100 crore का चेक मिला था. तो वो चेक जब मुझे मिला, वो पैसे मैंने कभी यूज़ भी नहीं करे, लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर हमें किक चाहिए होता है. तो वो एक चीज़ है जो मैं मेरे बिजनेस में चाहता हूँ. और एक मेरा अपकमिंग वेंचर भी है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, विच इज़ पब्लिक स्पीकिंग फॉर किड्स. क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि यार वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, एंड दूसरा वो एक स्केलेबल मॉडल है जो अब मुझे समझ में आता है कि अभी जब तक मेरे इंडिविजुअल प्रेजेंस से प्रोडक्ट बिकेगा, वो स्केलेबल नहीं है. तो हमने एक स्केलेबल मॉडल बनाया. तो अगर आप बोलोगे वो 100 crore का चेक अच्छा होगा जिस दिन मेरे पास आएगा, और उसमें भी मुझे ऐसा लगता है जब वो पैसे मेरे पास आएंगे, मे बी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं या बाकी लोग हैं, मैं उनको इंसेंटिव्स दे दूंगा, बाकी इधर उधर वो पैसा यूज़ हो जाएगा अपने लिए. यार अभी ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द ड्राइव इज वे मोर देन मनी. यू नीड मनी because a lot of good things happen in your life because of money. So many people are not even able to realize that, because people, till the time you don't have money, आपको समझ नहीं आता कि आप कितना कुछ अच्छा कर सकते हो उस पैसों से, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी. तो having money is good, but the kind of impact that you would create is what gives us greater satisfaction. तो क्या इंडिया में मनी कमाना, पैसे कमाना आसान है आपके लिए? बहुत ज़्यादा, मतलब आपके लिए या सबके लिए बोल? मतलब जनरली आज के डेट में, डिजिटल एज में अगर हम बहुत बात ज़्यादा करें, आसान है. और क्या बैरियर्स आपको दिखते हैं माइंडसेट वाइज या मनी को लेके, जिसकी वजह से लोग अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नज़रअंदाज कर देते हैं? कंडीशनिंग. कैसे? आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए कंडीशनिंग को. The way we have been brought up, we have always been told not to talk to strangers. We have been told not to trust other people. And that is the reason why when an opportunity comes in front of us, we do not even realize कि opportunity आके चली गई है. मैं आपको बताता हूँ, देखो अमूमन अगर हम एक परिवार में देखें, उस परिवार में महीने की शुरुआत में एक सैलरी आती है, जब तक 20-25 तारीख आती है उसमें आधे से ज़्यादा पैसा खत्म हो चुका होता है. हमें ये बोला जाता है कि अगर कुछ खरीदना है महीने के अगले महीने की शुरुआत में खरीद लेना, अभी पैसे खत्म हो गए. सो वी कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर इन वी लिव इन अ जोन ऑफ फियर, स्पेशली पर्टेनिंग टू मनी. तो जब तक आप फियर से ऑपरेट करोगे ना, आपके पास पैसे कभी भी नहीं आने वाले. सो फॉर पीपल टू इवन कंसीव द आइडिया कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, वो उस आइडिया को कंसीव ही नहीं कर पाते. तो अगर आप एक आइडिया को कंसीव ही नहीं कर पाओगे, तो फिर तो आप उस डायरेक्शन में काम ही नहीं करोगे, तो आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा. बट अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली इटसेल्फ में गवर्नमेंट सेक्टर से पेरेंट्स थे, तो एम आई राइट इन सेइंग कि उनका माइंडसेट भी सिमिलर होगा? 100% सिमिलर था. तो आपका या आपके ब्रदर का माइंडसेट इनसे अलग कब हुआ और कैसे? 2-3 चीज़ें हैं. एक तो मैंने बोला, देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए यू आर डेस्टाइन्ड. मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे कि मैं बचपन से इन सब चीज़ों में था. फिर जब मैं पुणे गया MBA करने, तो वो मेरे लिए मोर देन द एजुकेशन, द कॉन्फिडेंस दैट आई गॉट ओवर देयर, कि यार राहुल, यू आर वे बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु कम फ्रॉम कंपैरेटिवली प्रिविलेज्ड फैमिलीज. सिर्फ इतना. अभी उस सब चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस समय पड़ता था. मुझे लगता था अरे यार मैं भी उस परिवार से क्यों नहीं हूँ जहाँ पे इतना पैसा था. ये वो अभी अच्छा लगता है कि नहीं है तो आप और ज़्यादा सेल्फ मेड है एक तरीके से ना. वो वाला कॉन्फिडेंस जब आपके पास आता है, आपके लिए चीज़ें बदल जाती हैं. तो आप जब अपने उस जोन से बाहर निकलोगे, जिस जोन में अभी आप ऑपरेट करते हो, ओनली देन विल यू बी एबल टू रियलाइज दैट देयर इज सो मच अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट
जो कि आप अपने लिए ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, इन टर्म्स ऑफ पीपल हुम यू कम्युनिकेट विद, बहुत ज़्यादा अंतर होता है उन चीज़ों में। अब एक बंदा जो जिंदगी भर देहरादून में रहा है, उसके लिए तो देहरादून की जिस दुकान में उसने मोमोज खाए हैं वही सबसे अच्छी दुकान होगी। बिल्कुल। जिस रेस्टोरेंट में वो गया है वही उसके लिए सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होगा। हम लोग मुन्नार में एक बार गए थे, जिस रिजॉर्ट में हम रुके थे, आई वॉज लाइक ब्लोन अवे, यार बहुत फाड़ जगह है। मैं वहाँ पे लास्ट ईयर गया था। मैंने कहा यार ये तो कोई इतनी अच्छी जगह नहीं है यार, नाउ दैट आई हैव ट्रैवल्ड टू सो मेनी प्लेसेस। उस समय तक वो मेरे लाइफ की बेस्ट जगह थी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब आप इतनी सारी जगह जा चुके हो तब आपको लगता है यार इतनी भी अच्छी नहीं थी वो जगह, बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंसेस कम थे, तो इसलिए मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं होता कि वो कितना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन कंडीशनड लाइक दैट। तो उस कंडीशनिंग को हटाने के लिए अपना जो इन्वायरमेंट है वो चेंज करना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। आपका जब नया इन्वायरमेंट होगा, आपको नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपको नई चीज़ें नजर आएंगी, तब आपको दिखेगा यार बहुत कुछ है लाइफ में जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं अचीव कर सकता हूँ, जो अदरवाइज आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि आपका एक नया एनवायरनमेंट था जब आप कॉलेज गए, अगर आप आज रिवर्स इंजीनियर उसको करें तो आप बता पा रहे हैं एक्सपीरियंस कि एक न्यू एनवायरनमेंट से आपको न्यू थिंकिंग मिल गई, जो घर बैठा हमें सुन रहा है, लेट्स से उसके पास जो ऑप्शन नहीं है, तो क्या बेसिक माइंडसेट वो रख सकता है अभी मनी के बारे में? यार एवरीबडी हैज़ दैट ऑप्शन। आप बेसिकली फिजिकली ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज़, जो अच्छी कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे आप लोगों के संग एंगेज कर सकते हो। अब अगर एक बंदा है, लेट्स सपोज वो किसी Tier 3 सिटी में, राइट, वहाँ पे आपके आसपास लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि आपको ग्रोथ माइंडसेट रखते होंगे, लोकेशंस भी नहीं होंगी, मनी वाला फैक्टर भी नहीं होगा कि आपको ऐसे लोग दिख जाएं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट ऑनलाइन यू कैन look at content creators, you can become a part of communities, you can become a part of environments wherein there are people who are doing well. इतना सब कुछ है आपके पास अवेलेबल। आज के टाइम पे फिजिकल बैरियर तो खत्म हो गया ना यार, बट आर वी विलिंग टू इन्वेस्ट दैट टाइम एंड मनी टू बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज लाइक दैट? दैट इज द क्वेश्चन। अब जैसे मैं बार बार आप कुछ पूछने वाले में बीच में रोक दे रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। We have become a part of mentoring programs wherein we have invested 20 लाख रुपीस एक मेंटोरिंग प्रोग्राम का पार्ट बनने के लिए। अब कोई बोलेगा यार भाई 20 लाख रुपए मैं कैसे लगा सकता हूँ उसमें? आप उस एसोसिएशन की जो वैल्यू है वो 20 लाख से बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों को वो चीज़ नहीं रियलाइज़ होती। और दूसरी चीज़ क्या है, मैं किसी को अगर बोलूँगा ना उसके हाथ कांप जाएंगे इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बचपन से उसे बोला गया कि भाई पैसों को बचा के चलो, स्कैरसिटी है, ख़त्म हो जाता है, तो वो इंसान कभी भी इतना अमाउंट लगाएगा ही नहीं। मैं इसी पे यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। अगर वो ऐसे सोच रहा है तो उसका उल्टा क्या सोचे? वो उल्टा ये सोचेगा कि जो पैटर्न मैंने आज तक फॉलो करा है, जो पैटर्न आज तक मेरे पापा ने और मेरे दादाजी ने फॉलो करा है, उस पैटर्न की वजह से लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया है, तो इसका मतलब उस पैटर्न को चेंज करना ज़रूरी है। इफ़ वी हैव बीन फॉलोइंग अ पैटर्न फॉर द पास्ट 60 ईयर्स और मे बी 100 ईयर्स, बिकॉज अगर पापा की उम्र 60 साल है तो दादाजी अगर आज हैं तो 90 साल के होंगे। जो चीज़ ने 90 सालों में रिजल्ट नहीं दिए वो अगले 90 सालों तक भी रिजल्ट नहीं देगा बॉस, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। इससे क्लियर कट आंसर तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। मैं चाय बना रहा हूँ, बहुत ही ख़राब चाय बन रही है, लेकिन मैं बोलूँगा यार मैं ऐसे ही चाय बनाऊँगा और ये अच्छी बनेगी, तो भाई आप अगले 20 साल तक 2000 बार भी चाय बना लोगे वो ख़राब ही बनेगी, बिकॉज इंग्रेडिएंट, स्ट्रैटेजी, फॉर्मूला सब गलत है। सो अब आप इतने साल से अब आप एक एंटरप्रेन्योर रहे हो, क्या हर बंदा एंटरप्रेन्योर के लिए बना है? ये आजकल बहुत ज़्यादा चलता है कि ऑनलाइन कॉमर्स है, सबको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर रेस इन इंडिया, वी हैव द एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट नाउ इन इंडिया, हम लोगों यूएस के साथ compete करें, चाइना के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है एंटरप्रेन्योर पे, या फिर यू बिलीव दैट देयर इज़ अ प्लेस इन मार्केट फॉर पीपल हु आर गुड एंड दे शुड बी इन देयर जॉब्स? नहीं यार 100%। आप अगर जॉब कर रहे हो बहुत अच्छा करोगे। आई हैव माई फ्रेंड्स जिनका 1.5 करोड़ का 2 करोड़ रुपए का पैकेज है। एक बिजनेस ओनर को 2 करोड़ रुपए, अब चलो जिसका 2 करोड़ का पैकेज है वो 2 करोड़ रुपए तो वो भी नहीं बचाता होगा, खर्चे तो उसके भी होते होंगे, लेकिन वो 50 लाख रुपए बचा रहा होगा, ठीक है। एक बिजनेस ओनर को 50 लाख रुपए एक साल का बचाने के लिए अगर वो 10% की प्रॉफिटेबिलिटी पे या 12% की प्रॉफिटेबिलिटी पे ऑपरेट कर रहा है तो 4-4.5 करोड़ का धंधा बनाना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो 4-4.5 करोड़ का धंधा बना सकते हैं? एंड मैं इन सब चीज़ों से ज़्यादा बिलीव करता हूँ आपके हैप्पीनेस इंडेक्स पे। इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब विच इज़ पेइंग यू वेल एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इज कीपिंग यू हैप्पी, प्लीज डू दैट यार। जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरी लाइफ में फ्रीडम भी चाहिए, मुझे ट्रैवल भी करना है, मुझे अलग अलग जगहों पे भी जाना है। इफ बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू अर्न 70% ऑफ व्हाट आई एम अर्निंग टुडे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट यार। सो वहाँ पे एक आप ट्रेड ऑफ लेंगे? हाँ, ट्रेड ऑफ क्यों नहीं बोलेंगे ना, मुझे उसमें खुशी मिल रही है यार, बस ये है तो मैं वो करूँगा। हाँ, अब
मैक्सिमम लोगों को तो क्या होता है, लेकिन अगेन उस लेवल तक जाने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा ना, कि पैसों की वजह से या अच्छे कम्युनिटी में रहने की वजह से आपके पास कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं। प्रॉब्लम क्या है ना यार, अगेन सब कुछ ना कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। हमारी हिंदी मूवीज़ भी ऐसी बनाई जाती हैं कि जो बंदा अमीर है वो गलत काम करके ही अमीर बना होगा, जो हमारा हीरो है वो जिंदगी भर संघर्ष करता रहता है, नौकरी करता है बहुत मुश्किल से। नौकरी से मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा दिखाया जाता है कि वो बहुत दुखों से जूझ रहा है, उसकी नौकरी में बहुत तकलीफ है, उसके परिवारों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, वो सबसे उभरता है और लास्ट में उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। तो हमें लगता है कि यार मुझे इतने मुश्किल से गुजरना ही पड़ेगा। हमने बोला था ना कि भाई मैं नहीं चाहता दैट पीपल गो थ्रू एडवर्सिटी, लेकिन मूवी में और बाकी सब चीज़ों में ऐसा ही दिखाया जाता है। अगर एक बंदा अमीर है तो दिखाया जाता है उनके परिवार में कलेश होता है, उनके फैमिली वैल्यूज अच्छे नहीं होते हैं, डीप रूटेड नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में फीड करी गई हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल देयर आर पीपल हुम आई हैव मेट हु फील दैट रिच पीपल आर नॉट गुड पीपल, कि जो बंदा अमीर है यार वो कुछ ना कुछ गलत करके ही अमीर बना होगा। मैं अभी थाईलैंड में था, आई मेट एन इंडिविजुअल, तो ऐसी बात हो रही थी, तो उसने बोला सर मैं सारा ना काम ईमानदारी से करता हूँ, इसी वजह से मेरे पास अगर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा तो आज मेरे पास एक मर्सिडीज होती। मैं कुछ उसे बोला नहीं, मैंने कहा मतलब यहाँ पे कंडीशनिंग ही गलत है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर किसका मतलब जिसके पास मर्सिडीज है उसने कुछ गलत काम करा होगा। बिल्कुल। आई ऑल्सो हैव अ BMW, में गलत काम तो नहीं करता मेरी लाइफ में। कंडीशनिंग ही गलत है वहाँ पे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है दैट बिकमिंग रिच इज समहाउ इंक्लाइंड और कनेक्टेड विद डूइंग समथिंग रॉन्ग, विच इज़ द रॉन्ग थॉट प्रोसेस। लेकिन वो हमारे दिमाग में डाला गया बिकॉज सी people have been conditioned. I see that the system is also made like that, to make people feel कि यार आप अगर अपनी लाइफ में ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा अच्छा करने का सोचोगे तो you are bound to fail. It does not work like that. अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, there are a lot of wars that are going on. बिल्कुल। ये मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा कौन सही है या कौन गलत है, लेकिन सच्चाई है जो ताकतवर है उसके संग सही ही हो रहा है बॉस। Irrespective of whether they are on the right side or the wrong side, if you are powerful, good things are happening with you here. So becoming powerful is important in life. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कुछ गलत काम करो, लेकिन जो हमारे दिमाग में चीज़ें डाली गई हैं ना कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको कुछ गलत करना पड़ेगा, या आप बिल्कुल सही राह पे चलो, सब कुछ सही करो, ज़्यादा रिस्क मत लो, ज़्यादा रिस्क लोगे तो आप लोगों की लाइमलाइट में आ जाओगे, सब कुछ हो जाएगा. People only become, see, I'm not even able to understand how to put it into the right perspective. If you are powerful, then you will automatically see a lot of good things will happen with you. So let's say I'm a business owner and I come to you. आपने नोटिस कर लिया कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ सम कंडीशनिंग. आप मेरे लिमिटिंग बिलीफ्स कैसे ब्रेक करवाओगे? बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं. सबसे पहले तो उनको वो रियलाइज़ करवाना कि आपके पास जो प्लान ऑफ एक्शन है, जैसा मैंने बताया, वो 50 साल से फॉलो करने के बावजूद भी कुछ अच्छा नहीं हुआ. सो आपको नहीं लगता कि इस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा. सेकेंडली, आई मेक देम राइट what all good things will happen with you once you start earning good money, once you become financially independent, if that is something that you are looking forward to. People are not even able to write 10 points as to what they will do when they will become wealthy. Then I tell them, okay, right, if a person does not have money, तो वो किन किन परेशानियों से जूझते हैं. They can write 25, 30, 40, 50 points because they have experienced all of that in their life. लेकिन क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में लोग 10 पॉइंट भी नहीं ले पाते. तो अगर आप किसी चीज़ को कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो तो आप तो उस चीज़ को कभी भी रियलिस्टिकली अपनी लाइफ में अचीव ही नहीं कर पाओगे ना. तो वो वाला बैरियर तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Then making them realize about a lot of people, including us, who are doing financially well, but are living a very happy life, doing their work with honesty and dignity, helping a lot of other people, and giving them examples of multiple other people who are doing financially well, लेकिन वो अपना काम बहुत ethically करते हैं. Your limiting belief आपका कुछ था जब आपने स्टार्ट किया थिंकिंग कि मैं मनी के लिए ठीक हूँ, बट along the way you discovered कि यार ये मेरा सबसे बड़ा लिमिटिंग बिलीफ रहा है. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना अचीव कर पा रहा हूँ अभी, मुझे शायद शुरू में नहीं लगता होगा कि मैं इतना काबिल हूँ. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास नए रास्ते आते हैं, नए रिजल्ट्स आते हैं, तो आपका जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता है. इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. हम एक बार एक इवेंट अटेंड करने लंदन गए थे. वहाँ पे सौरभ, माई यंगर ब्रदर, वॉज अ पार्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री. आई वॉज नॉट. आई वॉज जस्ट अकम्पनिंग माई यंगर ब्रदर. तो वहाँ पे एक टास्क उन्होंने करने को बोला, और उस टास्क में उन्होंने ये बोला कि आपको बिजनेस आइडिया बनाना है, कुछ बनाना है, ऐसा कुछ करने के लिए बोला. एंड देन दे सेड दैट यू आल्सो हैव टू मेक अ वीडियो. आपको एक वीडियो भी बनाना है इसमें. और हमारी टीम में एक यूट्यूबर थे जिनके 2.5 लाख फॉलोअर्स थे. उसमें मेरा कंटेंट वगैरह इतना नहीं बनाता था. सो एवरीबडी वाज लाइक यार इतने यूट्यूबर को बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए.
मैंने बोला यार आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई. नोबडी इवन न्यू माई नेम, नोबडी न्यू मैं क्या करता हूँ. दे वर लाइक आई हैव कम विद माई यंगर ब्रदर. उसने कहा यार इसको करने देते हैं. उस बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ी, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, हुआ ही नहीं. 10 बार ट्राई करा, हुआ ही नहीं. मैंने बोला आई वांट टू गिव इट अ ट्राई. उसने बोला नहीं यार आप में नहीं कर पाओगे. सो मैंने बोला मेरे को बस एक चांस दे दो. मैंने स्क्रिप्ट उठाया, आई रेड दैट स्क्रिप्ट फॉर 2 मिनट्स, मैंने नीचे रख दिया. सो एवरीबडी स्टार्टेड स्माइलिंग. सी वी टोल्ड यू नहीं कर पाओगे. आई वाज लाइक आई एम रेडी टू मेक द वीडियो. मैंने वीडियो बनाया, मैंने एक टेक में टक करके 2 मिनट का वीडियो बना दिया. फिर उन्होंने बोला वी आर अमेज्ड यार, चलते हैं. मैंने कहा नहीं. मैंने कहा मैं इसका रीटारगेटिंग एड वाला वीडियो भी बनाऊंगा. तो आई मेड दैट वीडियो ऑल्सो. वो 40 सेकेंड्स का था. यू विल नॉट बिलीव इट, उस दिन डिनर टेबल पे, उस सारे टेबल्स पे यही बात हो रही थी. वो दैट गाय फ्रॉम इंडिया, ही इज एक्सेप्शनल, ही मेड दैट वीडियो. बिकॉज देखो यूट्यूब पे वीडियो बनाना और एक 1 टेक में वीडियो बनाना, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है ना. हमें नहीं पता वो बंदा कितने टेक्स में वीडियो बना रहा है यहाँ पे. सो उस दिन मुझे भी रियलाइज हुआ वो सारे लोग मुझसे ज़्यादा पैसे कमाते थे, वो सारे लोग मुझसे ज़्यादा फेमस थे, लेकिन उनके सामने परफॉर्म करके व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यू एंड पीपल आर लाइक मैन यू वर अमेजिंग, यू वर इनक्रेडिबल. आप सोच रहे हो मेरा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा. तो आपकी लाइफ में जब आप एक लेवल अचीव करते हो, फिर आपको अपनी ताकत के बारे में और पता चलता है कि मैं और कितना कर सकता हूँ, मैं और कितना कर सकता हूँ. इसके लिए भी तो मेरे उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था ना. आपको लगता है आपकी एक ताकत है कि आप बहुत जल्दी सोच लेते हो, डिसाइड कर लेते हो? You believe that's your power? And that is a power that every successful person has. The ability to take actions fast. आप जितना ज़्यादा डिसीजंस लोगे, आप उतनी ज़्यादा बार सही भी होगे, आप उतनी ज़्यादा बार गलत भी होगे. यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल है जो मैं कोट करना चाहूँगा. ये जेफ बेजोस जी का एग्जाम्पल था. उन्होंने बेसबॉल के रेफरेंस में दिया था कि जब आप होम रन मारते हो तो होम रन आपका बाउंड्री के बगल में गिरता है या बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, आपको सेम नंबर ऑफ रन्स मिलते हैं. बट दैट इज़ नॉट हाउ अ बिजनेस ऑपरेट्स. बिजनेस में अगर आपने एक लंबा छक्का मारा तो वो आपकी पुरानी 20 गलतियां, 25 गलतियों में जो आपने नुकसान करा होगा उसको सबको कॉम्पनसेट करता हुआ निकल जाता है. क्लीन स्लेट कर देता है सब कुछ, और वो आपको बहुत ज़्यादा एज दे देता है. लेकिन उस 24 गलतियां करने के बाद खड़े रहने की हिम्मत आप रखते हो कि नहीं रखते, वो इंपॉर्टेंट है. अब एक एवरेज इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 7 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है बस. पहले कुछ डिसीजंस हमारे मम्मी पापा लेते हैं, हम किस स्कूल में जाएंगे, किस कॉलेज में जाएंगे, कौन सा करियर चूज करेंगे, किससे शादी करेंगे, कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, घर कौन सा लेंगे और हमारे बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे. आप सोचो एक इंसान 80 साल के जीवन में सिर्फ ये 7 डिसीजन ले रहा है. उसके मुकाबले अगर एक इंसान 100 डिसीजन ले रहा है मे बी 5 सालों में, तो द पर्सन हु इज टेकिंग 100 डिसीजंस, इवन इफ ही इज टेकिंग 90 रॉन्ग डिसीजंस, ही हैज टेकन 10 गुड डिसीजंस कंपेयर्ड टू द अदर पर्सन हु हैज टेकन ओनली 7 डिसीजंस. तो ये बंदा तो बाय डिफॉल्ट जीतने वाला है ना. दिस इज व्हाट वी आर नॉट एबल टू इवन अंडरस्टैंड एंड इंट्रोस्पेक्ट. और ये रॉकेट साइंस नहीं है बॉस. आप ज़्यादा डिसीजन लोगे, आप ज़्यादा अच्छा करोगे, आप सक्सेसफुल बनोगे. आपकी डिसीजन लेने की क्षमता देखो. अब मैं यही एक शर्ट लेकर आया हूँ आज, ठीक है. मुझे 6 वीडियोस बनाने हैं, पॉडकास्ट करने में, यही शर्ट पहन के 6 पॉडकास्ट कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके हमें इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए. मुझे क्या कपड़े पहनने हैं, मुझे कहाँ पे ट्रैवल करना है. मैं जैसे देहरादून से आया, मैंने देखा ट्रेन में टिकट अवेलेबल है, मैंने फटाफट टिकट बुक करा. थोड़ा तत्काल में था, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लग रहे थे, मैं इन सब चीज़ों में इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं लगाता. ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं है. आप किस डिसीजन को लेने में कितना टाइम लगा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी सक्सेस और आप अपने एबिलिटी के हिसाब से अचीव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. अगर मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम लगाता रहूँगा तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा. व्हेन आई वाज इन गोवा, आई वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, हमारे टीम मेंबर है, अदिति नाम है उनका. तो हम फ्यूल डला रहे थे. उसने कहा अरे यार राहुल, यहाँ पे ना फ्यूल बहुत ज़्यादा सस्ता है देहरादून के मुकाबले. आई लुक्ड एट हर, सोचा अच्छा मैं समझ गई, हमें इन सब चीज़ों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए. मैंने कहा टमाटर का दाम कितना बड़ा है, पेट्रोल के दाम में कितनी कमी हुई है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन हम इन्हीं सब बेकार की चीज़ों में अपना समय ख़राब करते रहते हैं. आप अगर एक गाड़ी से आ रहे हो, आप कार चला रहे हो, मैक्सिमम कितने रुपए का आपका ऑयल ज़्यादा लग जाएगा एक महीने का? 200 रुपये का, साल का 2400 रुपये का, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? हम उसके ऊपर डिबेट करने में अपना कितना टाइम ख़राब कर देते हैं. तो छोटी छोटी चीज़ों में मैं कभी भी अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी नहीं लगाता हूँ भाई. ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे. उसी की वजह से बंदा आगे अच्छे डिसीजंस, बड़े डिसीजंस के लिए एनर्जी कंजर्व कर पाता है. राइट. आपने बीच में एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज़ किया, पैशन. आपकी शुरुआत की स्टेटमेंट भी थी कि आई एम अ पैशनेट इंडिविजुअल. हाउ मच डू यू बिलीव दैट पैशन होना, लव फॉर व्हाट यू डू इज़ इम्पॉर्टेंट? लाइक अगर मैं हायरार्की रखूँगा, मनी, लेट्स से लग्जरी ऑफ द ऑफिस या लोकेशन जहाँ आप काम कर रहे हो, लाइफस्टाइल, एंड एक पैशन और प्यार अपने काम के लिए, तो इन तीनों में से आप इसको किस ऑर्डर में रेट करोगे? मैं ना यहाँ पे पैशन को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखता हूँ. पैशन से मेरा मतलब ये हुआ कि आपको वो काम करना है irrespective of whether you like it or you don't like it. Having love for your work does not mean that you will enjoy doing everything.
दैट यू आर डूइंग. आई लाइक स्लीपिंग यार. मैं सुबह बहुत देर तक सोना चाहूँगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि सुबह मीटिंग है तो मैं उठ के जाऊँगा इवन दो आई एम नॉट लाइकिंग इट. ये एक थोड़ा सा रॉन्ग परसेप्शन है दैट यू विल लव वॉट यू डू. 80% of the things that you are doing, you will not love it. But you will still do it because of the outcome that you are going to get out of it. तो अब मैं ये बोलना चाहूँगा, you should love the outcome. ये बहुत important है. And you should love the process. Because irrespective of whether you are enjoying it or not. अब यार ये थोड़ा सा तो statement ऐसा हो गया कि अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, then how will I love it? The reason why you are going to love it is because you need to understand that is how winning is done. You need to do a lot of boring stuff. And you need to do it passionately. Even if you are not enjoying it, because आप over a period of time उस काम में बहुत अच्छे हो जाते हो, और जब आप किसी काम में बहुत अच्छे हो जाते हो तो आपको वो करने में मजा आने लग जाता है. ये सिंपल सी बात है. आप कोई भी नया काम कर रहे हो, शुरू में तो यू आर गोना बी वेरी बैड एट इट, एंड दैट इज व्हाई यू विल नॉट लव इट. बट देन व्हेन यू डू इट ओवर एंड ओवर अगेन, तब आप उस काम को बहुत आसानी से करने लग जाते हो, तो आपको वो करने में मजा भी आने लग जाता है. बट जैसे कि अगर आपको मैं डे 0 पे ले जाऊँ, आपके MBA के टाइम, ग्रेजुएशन टाइम, जब आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, तब सेलेक्टिंग बिटवीन जॉब और एक बिज़नेस, वहाँ पे कुछ लव या प्यार का था कि मुझे यार ये करना ज़्यादा मज़ा आता है. जैसे उस समय पे तो यार, जैसे मैंने बोला ना, मैं शायद थोड़ा सा एरोगेंट भी था. दैट हैज़ चेंज्ड. जब मैंने बोला नहीं यार मैं जॉब वॉब नहीं करूँगा यार, मैं MBA करते करते इतना पैसा कमा रहा हूँ, ये कंपनी वाले मुझे क्या पैसा देते हैं. आई हैड अ लॉट ऑफ एरोगेंस ऑल्सो. वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था वहाँ पे. और दूसरी चीज़, हाँ मुझे बात करना बहुत पसंद था, तो मैंने उसी प्रोफेशन को चूज़ करा. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि यार इतना आसान तो नहीं है. और मैं बहुत सारे ऐसे काम भी करता था, जैसे देखो बात करना पसंद है, लेकिन आप लोगों को अपने बिजनेस आइडियाज़ बताने जा रहे हो, लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, लोग आपको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, लोग आपको अपने रेस्टोरेंट के अंदर आने भी नहीं दे रहे हैं, बट यू विल स्टिल डू इट बिकॉज यू नो कि यार ठीक है, एंड आउटकम इसका अच्छा है. तो आपको वो काम करने में उस समय तो मज़ा नहीं आ रहा है ना किसी भी हाल में. और एक और बात है यहाँ पे ना यार, देखो हमारा जो पैशन होता है सो कॉल्ड, दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ. तब तक मैक्सिमम लोगों का पैशन क्रिकेट क्यों होता है भाई? क्योंकि उन्होंने कोई और गेम खेला ही नहीं होता, क्योंकि क्रिकेट इज वेरी इजीली अवेलेबल. आपकी 10 रुपए की बॉल आती है, आप एक बैट ले सकते हो, यानी कि 200 रुपए में 20 लोग खेल सकते हैं. बिल्कुल. आप गोल्फ नहीं खेल सकते इतने रुपए में, आप शूटिंग नहीं कर सकते, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, इतने सब चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगता है. तो मेरा पैशन क्रिकेट हो गया, क्योंकि आज तक मैंने अनुभवी क्रिकेट को करा है. बस ये चीज़ है. आपका पैशन, आपका थिंग्स दैट यू एंजॉय, all of that will change over a period of time when you will get new experiences in your life. That is why the term that you should follow your passion is wrong. You should do something which you know is also going to help you economically, because once you start doing well financially in your career, in your professional life, you will start enjoying in your personal life also, because you will have the money to do things that you have never had in your life, to have experiences that you have never had in your life. अब आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल के लायक नहीं है आपका गेम, आप नहीं जा सकते. तो आप वहीं पे कुछ अपने सिटी के कुछ मोहल्ले वाले टूर्नामेंट्स में खेलते रहोगे, कुछ समय के बाद आप वो भी करना बंद कर दोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू पुट फूड ऑन योर टेबल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जो मुझे समझ आ रहा है कि पैशन के साथ साथ आपको इकोनॉमिकली भी देखना है कि अगर आपके पास 4 चीज़ें हैं, A, आप इसको लेके सबसे ज़्यादा पैशनेट हो, B, इसको लेके आप थोड़े बहुत पैशनेट हो, C, ये आपको ठीक ठाक लगता है लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा पैसे कमा के देगा, तो आपको ये करना चाहिए. बिकॉज देन व्हेन यू स्टार्ट डूइंग वेल हियर, आपकी बाकी दोनों चीज़ें अपने आप ही फुलफिल हो जाती है ना. मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, अब मेरा काम मुझे अलाउ करता है कि मैं ट्रैवल कर सकूँ. मुझे एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मैं एक MTV के शो पे भी आया था पहले, तो अब मैंने वीडियोज़ भी बनाए जिसमें कि मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ. मे बी उसी डायरेक्शन में आप आगे कुछ अपना वेब सीरीज़ लॉन्च करना चाहते हो, कुछ भी करोगे, तभी तो करोगे ना जब आपको पता है यार मेरे पास पॉकेट में पैसा है, कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को जो खर्चा करना है, मेरे को जो सैलरीज देनी है, मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ. अदरवाइज आप कितने समय तक अपने पैशन को परस्यू कर लोगे? ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु हैव बिकम सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्सेप्शंस. एंड ये चीज़ मैंने डॉक्टर वेलुमनी जी से भी सुनी थी. इन लाइफ इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो एक्सेप्शंस, यू आर बाउंड टू फेल. ये बहुत बड़ी सच्चाई है. जैसे मार्क ज़करबर्ग है ना, हम बोलते हैं कि भाई वो एक्सेप्शन है, उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को छोड़ा और सक्सेसफुल बने. बिल्कुल. देयर आर 99.999% पीपल हु हैव नॉट अचीव्ड दैट. इफ यू वांट टू फॉलो एक्सेप्शंस, यू आर गोइंग टू फेल प्रिडोमिनेंटली. वेदर यू आर विलिंग टू पे दैट प्राइस, कि मैं फेल भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वो करना था, तब तो आप कर सकते हो. मैं इसमें आपसे एक फ्लिप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा. अगर आपको स्पीकिंग से
और स्पीकिंग के बारे में, कम्युनिकेशन जो आपने प्लान कोर्स आप जो शुरू कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी डीपर जाना चाहूँगा. बट फॉर नाउ, अगर लेट्स से आपको कम्युनिकेशन या स्पीकिंग से प्यार नहीं होता, क्या फिर भी आप कोचिंग लाइन या जिस वे में आप हेल्प कर रहे हैं लोगों को, वही चूज़ करते? इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आपको आंसर देने से पहले ना. आई लाइक कम्युनिकेटिंग, बट आउट ऑफ दैट कम्युनिकेशन आई फाउंड वेज दैट कुड हेल्प मी मोनेटाइज. इट वॉज नॉट जस्ट कि मैं रैंडम बातें कर रहा हूँ. बिल्कुल. मैंने सेल्स करना सीखा. सेल्स करने के लिए बात करना ज़रूरी है. मैंने वीडियोस बनाना सीखा. वीडियोस बनाने के लिए मेरे को बात करना ज़रूरी है. सो आई फॉलोड डूइंग व्हाट आई लाइक डूइंग, बट आई ऑल्सो आइडेंटिफाइड वेज वेर इन आई कुड मोनेटाइज इट टू द फुलेस्ट, एंड ओनली देन वर वी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो आपने इकिगाई का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें बोलते हैं कि आपको 4 चीज़ें चाहिए टू हैव अ वेरी मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल करियर. पहला वो बोलते हैं आपको उस चीज़ से प्यार होना चाहिए. जो भी हम पैशन वर्ड यूज़ करें, लव, एन्जॉयमेंट, लेट्स यूज़ एनी ऑफ द वर्ड्स. सेकंड, यू शुड बी गुड एट इट. आपको खाली अच्छा नहीं लगना चाहिए, जैसे आपने सोने का एग्जाम्पल दिया. यू शुड बी गुड एट अ स्किल. थर्ड, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड में उस चीज़ की नीड होनी चाहिए कि आप जो भी कुछ अच्छा कर रहे हो या जिसमें आपको एन्जॉयमेंट मिल रही है, उससे आप कोई नीड सॉल्व कर रहे हो. एंड फोर्थ, उस नीड के लिए लोग पैसे भी देने चाहिए, अच्छे पैसे. तो क्या नोइंगली अनोइंगली आपने यही कॉन्सेप्ट अपने करियर में अप्लाई किया है? आई फील येस दैट हैज़ हैपेंड. एट द सेम टाइम मैं इसमें 3 चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा अग्री करता हूँ. पहला, डिमांड होनी चाहिए, यानी कि लोग उसको पे करने के लिए ज़रूरी हैं, तैयार होने चाहिए. इसके अलावा आप उसमें अच्छे होने चाहिए, ये बात भी ठीक है. एटलीस्ट यू नीड टू बी अ लिटिल गुड एट इट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप बहुत एक्सेप्शनल हो जाओगे जब आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू लव इट. You fall in love with the work that you are doing over a period of time when you start accomplishing a lot in that particular sector. That is what I truly believe. अगर आपको कोई काम से चीज़ से प्यार है और आप उसी में अच्छा कर ले जाओ, तब तो बहुत ही अच्छा है ना. लेकिन आपको जिस चीज़ से प्यार है, अगर वो मोनेटाइज हो ही नहीं सकती है कुछ भी करके, तो आप चेंज करिए. चेंज करना ही पड़ेगा आपको भाई. फाइंड समथिंग जिसमें थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट होए. हाँ, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन वो मोनेटाइज बहुत ज़्यादा हो सकता है. मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं आपको थोड़ा लॉ फर्म वर्ल्ड के बारे में बताना चाहूँगा. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ लॉयर्स ग्रेजुएट एवरी ईयर. ऑलमोस्ट अभी एक स्टेटिस्टिक आया था दैट 1 लाख लॉयर्स ग्रेजुएट एवरी ईयर इन इंडिया. एंड उसमें से जो टॉप लॉ फर्म्स में जॉब आर ओनली गोइंग टू सम लेट्स से 1000 पीपल, और उसमें से भी 500 पीपल 400 पीपल एक बहुत अच्छी जॉब सिक्योर कर पा रहे हैं. बट आई हैव सीन ओवर द लास्ट 14 ईयर्स जब जो भी एक अच्छी इंटेंसिटी से आता है, पीपल आर लुकिंग एट मनी, स्टेटस, एक अच्छी लॉ फर्म में आ रहे हैं. बट 2-3 साल में हवा निकल जाती है एंड दे आर डिसएंचेंटाइज्ड बाय व्हाट दे सॉ, जो उनको लगा. और जिनमें अगर वो क्या बोलते हैं पैशन या एनर्जी नहीं है, वो उस लाइन से हट जाते हैं. तो उस सिनारियो को हम कैसे वे करें इन चारों फैक्टर्स? यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया ना बॉस, एंड दैट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ स्टैमिना. आपको किसी भी इंडस्ट्री में अच्छा बनने के लिए और टॉप पे रहने के लिए 10-15 साल तो देने पड़ेंगे. अगर मेरे पास वो स्टैमिना नहीं है और मैंने डेवलप नहीं करा, ये भी डेवलप करा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जस्ट लाइक एवरी अदर स्किल. आपने अगर वो स्टैमिना नहीं डेवलप करा तो आप नहीं टिक पा रहे हो वहाँ पे. और अगर आपके नंबर्स में देखूं तो यानी कि 1% लोग हैं जो बहुत अच्छा करते हैं. वो तो हर इंडस्ट्री में है ना यार. और वो 1% तक पहुंचना आज के टाइम पे इतना मुश्किल नहीं रहा है, बिकॉज पीपल आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड. लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं. बी, लोग अपने स्किल सेट्स के ऊपर इतना काम नहीं करते. सी, लोग इतने लंबे समय तक डटे नहीं रहते हैं. तो जब ये तीनों फैक्टर्स आप हटा दो तो आपका कंपटीशन एक्चुअली में बहुत ही कम लोगों के साथ है. वो सिर्फ आपके माइंड में है. तो ये आप जेनजी सो कॉल्ड में देख रहे हैं? जेनजीज नहीं, सबके संग है यार. आज से पहले भी ऐसे ही था. आज से पहले भी 2%, 1.5% लोग ही सक्सेसफुल होते थे. पहले के टाइम पे नॉलेज स्कैर्स था. आज के टाइम पे नॉलेज अबंडेंस में है. तो अब आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं क्या देखूं और क्या ना देखूं. ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है. पहले के टाइम पे हमारे पास और रिसोर्सेज थे समय खराब करने के, हम आपस में बैठ के बातें करते रहते थे. अभी वो समय हम हमारा फ़ोन के ऊपर बैठ के खराब कर लेते हैं. तो ऐसा पहले भी था. लेकिन जो लोग सक्सेसफुल होते थे वो पहले भी 1.5 से 2% ही होते थे. स्टैमिना होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर गुड एट योर क्राफ्ट, if what you are doing you are liking it, if people are ready to pay for it, but if you don't have the stamina, खत्म हो जाएगा 2 साल के अंदर सब कुछ. क्या करोगे तब उसके बाद? सचिन तेंदुलकर बहुत ज़्यादा गिफ्टेड थे. राहुल द्रविड़ उनके जितने गिफ्टेड नहीं थे, लेकिन अपने एफर्ट्स की वजह से टिके रहे, अच्छा कर गए. लेकिन स्टैमिना तो दोनों में था ना.
सचिन वॉज वेरी टैलेंटेड बट क्या स्टैमिना नहीं था, बहुत ज्यादा स्टैमिना था यार, 24-25 साल खेले हो बंदा। सेम थिंग राहुल द्रविड़ शायद उतना टैलेंटेड नहीं थे लेकिन स्टैमिना उनके अंदर भी था, इसीलिए लंबे समय तक टिके रहे। हाँ, तो स्टैमिना होना तो बहुत जरूरी है ना। अगर आपने स्टैमिना नहीं है, डेवलप करते हैं हर एक चीज को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपने उस चीज को डेवलप ही नहीं करा तो फिर आप इतना काबिल नहीं बन पाए हो कि वो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। तो जब तक वो काबिलियत नहीं आई है वो रिजल्ट नहीं आएंगे आपके पास। तो अगर मैं इस एस्पेक्ट को कंक्लूड करना चाहूँ कि अगर कोई भी हमें सुन रहा है यहाँ पे, पैशन वर्सेस मनी के सो कॉल्ड डिलेमा को, तो हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं कि आपको स्टार्टिंग में किसी चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट। बट जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट के साथ आप उसमें मॉनेटरी पोटेंशियल भी चेक करिए, राइट। जिसमें इंटरेस्ट अगर थोड़ा है बट मॉनेटरी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। एंड थर्डली इसमें आपको एक स्टैमिना भी बिल्टअप करना चाहिए जो ओवर द इयर्स, बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग वेल फाइनेंशियली इन योर प्रोफेशनल लाइफ, आपको पर्सनली जो बाकी चीज़ें पसंद हैं आप वो भी अपनी लाइफ में कर ले जाओगे फिर। अब अगर आप देखो जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं वो तो अभी 3 चीज़ें करते हैं। दे आर ऑल्सो डूइंग स्टफ दैट दे एंजॉय डूइंग अ लॉट। मे बी उनको जो चीज़ें बचपन में पसंद होंगी बीच में नहीं करी होंगी बिकॉज अपने करियर में सक्सेसफुल होने में फोकस करा होगा। अभी जब फंड्स आ गए हैं, रिसोर्सेज आ गए हैं, कनेक्शंस बन गए हैं, तो बाकी चीज़ें भी करने लग गए हैं फिर वो अपनी लाइफ में। टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ शाहरुख खान, ही वॉज एन एथलीट राइट। जब वो कॉलेज में थे हॉकी खेलते थे, बाकी गेम्स भी खेलते थे, करियर चूज करा, परस्यू करा एक्टिंग में। लेकिन आज के टाइम पे तो भाई अपने क्रिकेट टीम्स भी हैं, और अगर उनको दुनिया में किसी भी क्रिकेटर के संग खेलना होगा अपने घर पे भी बुला के खेल सकते हैं साथ में, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने अपने करियर में प्रोफेशनली उतना अच्छा कर लिया है। ये थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव है, लोग इस तरीके से देखते नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है। और इसका रीज़न भी है ना यार, देखो 99% लोग जो हमें सुनेंगे, या अगर वर्ल्ड वाइड भी देखो इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा वेल्दी फैमिलीज से नहीं आते हैं। सो देन व्हाट चॉइस डू यू हैव? At the end of the day, see, we need to be optimistic, but we also, along with being optimistic, we also need to be realistic. Nobody, including your own parents, are going to support you maybe after the 3rd or the 4th year if they see you struggle with money यार। तब क्या करोगे? कितने समय कर लोगे? कितना लड़ लोगे अपने घर वालों से? वहाँ आपने बताया शायद डायरेक्शन ही गलत अप्रोच होगी। हाँ। और आप मतलब अगेन यू कैन compete and fight against everybody else, but you can't do that against your own family members. And they are also not against you. They care for you. And that is the reason why they are asking you questions multiple times, questioning whether what you are doing is right or wrong. Because they are also very much concerned about you. आप कितने समय तक वो लड़ाई लड़ लोगे यार? इससे अच्छा नहीं है कि आप फाइनेंशियली अच्छा करो अपनी लाइफ में, उसके बाद जो बाकी चीज़ें आपको परस्यू करनी है आगे भी करो। जो आपकी हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, स्मॉल इंटरेस्ट है, उसको परस्यू कर सकते हैं। तो इस एंटरप्रेन्योर सेगमेंट को मैं कंक्लूड करने से पहले मुझे आपसे 2 माइंडसेट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसमें मुझे आपका माइंड जानना है। लोग बहुत आजकल एक वर्ड यूज़ करते हैं, फेलियर। आपका उस पर क्या व्यू है, और आपके लिए फेलियर का क्या मतलब है? मुझे ऐसा लगता है यार, मेरे लिए जो फेलियर की परिभाषा होगी कि आप कोई चीज़ कर रहे थे, करते करते आपने किसी भी कारणवश क्विट कर दिया, ओनली देन विल आई से दैट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फेलियर। अगर मैं उसको डिफाइन करना चाहूँगा तो मैं इसको आपको यहाँ एक बार रोकना चाहूँगा, बिकॉज आपने एक टाइम अपना डायरेक्शन भी चेंज किया। आप उसको फेलियर के बकेट में डालेंगे या फिर आपको उसको ब्रॉडर स्ट्रैटेजी बोलेंगे? बिकॉज क्या हर चीज़ छोड़ना या क्विट करना, कैन इट बी गिवन अ कॉनोटेशन ऑफ फेलियर? अगेन मैंने आपको यही बोला ना, आई डिड नॉट चेंज द एंड आउटकम दैट आई वांटेड टू अचीव, आई चेंज द वे वी वर डूइंग थिंग्स। आई वांटेड टू एजुकेट अ लॉट ऑफ पीपल, आई वाज डूइंग दैट। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ यार, मैं अगर स्कूल्स कॉलेजेस में जाता रहूँगा तो मैं शायद ज़िंदगी भर 5,000 10,000 लोगों से ज़्यादा लोगों को एजुकेट नहीं कर पाऊँगा। आज की डेट में क्योंकि हमने हमारा डायरेक्शन चेंज करा, तो जो मेरे सेशंस हैं वो 20 लाख लोगों ने अटेंड करें। तो हमने काम करने का तरीका बदला, लेकिन काम तो हम तभी भी वही करते रहे। ये पहली चीज़ है। दूसरा, अब यार देखो इसमें ऐसा भी हो जाता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद किसी मेडिकल रीज़न की वजह से या परिवार में कुछ हुआ इस कारण की वजह से शायद कंटिन्यू नहीं कर पाते जो वो कर रहे हैं। मैं ये चीज़ भी समझता हूँ, मैं एम्पैथी रखता हूँ वहाँ पे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं आते हैं, तब हम चीज़ों को बदल देते हैं, या तब मैं क्विट कर देता हूँ, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करता। दैट इज़ व्हाट आई वुड कंसिडर टू बी अ फेलियर। बाकी उसके अलावा आपको पैसों का लॉस हो गया, आपने कुछ गलतियां कर दी, आप जिस काम में कर रहे हो आप बहुत लंबे समय से कर रहे हो लेकिन आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल राइट। ऑल ऑफ दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम दैट यू आर प्लेइंग राइट नाउ। एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू लर्न एंड
विलिंग टू इंट्रोस्पेक्ट कि जो मैं कर रहा हूँ अगर ये मेरे को सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू डू दैट यू विल ऑलवेज बी इन द गेम. द डे यू आर लाइक नहीं यार अब ये होगा ही नहीं और आप छोड़ देते हो उस चीज़ को, तब दिक्कत हो जाती है. हमने शुरुआत में कम्युनिकेशन के बारे में बात की और आपने बताया दैट यू आर स्टार्टिंग पब्लिक स्पीकिंग फॉर चिल्ड्रन विद इन 11 to 15 years. 11 to 15. Why communication? And why for kids? आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस बात को, अपने स्किल सेट को, अपने नॉलेज को बातों के माध्यम से सामने वाले इंसान के सामने नहीं ले जा पाते, nobody is going to get to know कि आप कितने अच्छे हो अपने क्राफ्ट में. बैक स्टेज जब हम इंटरेक्शन कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि यार सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास 30 सेकंड होते हैं अपनी बात को लोगों के सामने लेके जाने के लिए. आप अपने स्किल में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उस 30 सेकंड में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं कन्वे कर पाओगे, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते ना यार. आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है. दूसरी चीज़, हमारे अकेडमिक करिकुलम में हमारे कम्युनिकेशन पे, पब्लिक स्पीकिंग पे, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा जोर कभी दिया ही नहीं जाता, इतना एम्फेसिस ही नहीं करा जाता. हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कभी भी इतना एम्फेसिस डालते ही नहीं है. अब आप सोचो, जो बच्चा उस स्कूल में, उस क्लास में टॉपर होगा, उसको शायद मौका मिलता होगा मॉर्निंग असेंबली में बोलने का, वो भी साल में 3-4 बार. हमारे स्कूल में भी यही होता था. तो बाकी बच्चे तो कभी बोल ही नहीं पाते यार. तो और उनके परिवार में शायद पेरेंट्स को इतना पता भी नहीं है, आता भी नहीं है और समय भी नहीं है, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं भाई. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पैसे कमाने में, अपने परिवार को देखने में. तो अगर ये काम हम बच्चों के लिए कर पाएं जब वो सबसे छोटे हैं, क्योंकि उस समय पे उनको ना किसी भी तरीके से ढालना, माइंडसेट चेंज करना, कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ईजी है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बैगेज नहीं कैरी कर रहे हैं अपने संग, नेगेटिविटी नहीं कैरी कर रहे हैं अपने संग. यही काम किसी के लिए कर पाना जब वो 20 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया है, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे संग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस आ चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग लेके चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें लोगों ने दे दिया होता है. तो अगर ये चीज़ आप चाइल्डहुड में कर ले जाओ तो बहुत अच्छा है. सेकेंडली, मेरी सक्सेस जो भी मैंने अचीव करा है लाइफ में अभी तक, उसमें मेरे दादाजी का एक बहुत बड़ा योगदान है. मैंने बताया था, उन्होंने मेरे को रोज़ सेंटेंसेस दिए थे कि हिंदी में है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करो, और मैं शायद रोज़ मैथ्स के 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करता था रोज़. तो जब आप ऐसा कुछ करोगे और यू विल डू इट फॉर 10 years, आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से तो बहुत अच्छे हो ही जाओगे ना. यू हैव डेवलप्ड दैट मसल. सो आई वांट टू डू दैट फॉर पीपल. सेकेंडली, आप अगर एक Tier 3 सिटी में जन्मे हो, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको ग्रो करेगा, आपके स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा, आपके परिवार में भी नहीं होगा. लेकिन क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप इंडिया भर के हर किसी से बात कर सकते हो. आप 11 साल के होने के बावजूद 15 साल के बच्चे के संग बात भी कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो. आपको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिल रही है, आपको करिकुलम मिल रहा है एजुकेशन का और कम्युनिकेशन का, जो कि मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है. तो आप अपने उस लिमिटिंग फैक्टर से बाहर निकल गए जो कि आपको ग्रो करने से रोक रहा है. जो एक्सपोजर मुझे मिला पुणे में जाके जब मैं 22 साल का था, जो एक्सपोजर मेरे भाई को मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके जब वो 18 साल में था, आज की डेट में वो एक्सपोजर हमें 11 साल के बच्चे को दे देंगे. और आप सोचो, वो हर हफ्ते उनकी 3 क्लासेस होंगी, तो एक बच्चा एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 156 बार कम्युनिकेट कर रहा है, साथ में वो वीडियोस भी बना रहा है, कंपेयर टू अनदर स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास जो शायद असेंबली में 4 बार बोल रहा है एक साल में. तो ये बच्चा कितना भी आज के टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आफ्टर 1 year ये तो बहुत आगे चला जाएगा ना दूसरे बंदे से अपने आप ही. दैट्स द थिंग. एज अ चाइल्ड अब आपको देख के लगता है कि यू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब. एज अ चाइल्ड आप बहुत टॉकेटिव थे, आप बहुत अच्छे थे स्पीकिंग में, या आपकी जर्नी क्या रही है? यार मैं बोलता था, मुझे बहुत सारे लोग बोलते भी थे कि चुप हो जाए, इतना बोलना नहीं चाहिए. लेकिन एट द सेम टाइम मैं स्कूल में वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता था कि मैं स्टेज पे जाके बोलूँ. फिर जब मैंने मेरा स्कूल चेंज करा था, आई हैड एन इंग्लिश प्रोफेसर, हिज नेम इज़ मिस्टर PS चौहान. ही सॉ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन मी. उन्होंने मेरे को बोला आप असेंबलीज में बोलो, क्लास प्रेजेंटेशंस दो. ही प्रिपेयर्ड मी. उसने बोला आप हेड बॉय के लिए भी खड़े हो जाओ, कम्पीट करो. फिर मैं हेड बॉय भी बना सब कुछ. तो मेरे अंदर पोटेंशियल हमेशा था, बट दैट पर्सन प्लेड अ वेरी पाइवोटल रोल इन मी डेवलपिंग दैट कॉन्फिडेंस ऑफ माइंड. अब अगर मैं ये बोलूँ, अगर वो बंदे मुझे नहीं मिलते मेरी लाइफ में, तो मैं कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो जाता, जब तक मैं अपने उस कॉन्फिडेंस को लोगों के सामने नहीं लेके जा पाता या डेवलप नहीं कर पाता और ज़्यादा, तब तो जो भी आज हम कर पा रहे नहीं कर पाते ना. So I feel that mentoring plays a very prominent role. So I was good at talking, but I did not have the confidence to speak in front of so many people. That confidence was given to me by that English teacher. And the other concept wherein I became good with numbers and communication, that was provided to me because of my grandfather. So I want to pass on that legacy to a lot of kids today, जिनके पास आज वो opportunity नहीं है. Why education? Why be an educator? Why not be happy with
helping corporates and maybe do a 9 to 6 आप job. अगर देखोगे यहाँ पे तो आप कॉर्पोरेट्स को भी तो एक तरीके से हेल्प कर ही रहे हो, बिकॉज जिन लोगों को आप हेल्प कर रहे हो दे आर वर्किंग इन कंपनीज, they are putting in efforts over there. Secondly, I feel that very few people are chosen to do this kind of work that I'm doing today. Third, मुझे ऐसा लगता है that earning money is okay, but if I know that I have the potential to transform, बहुत बड़ा word हो जाता है, to bring about a small contribution in bringing transformation in people's lives, then I should give my 100% to do that. Because अगर आपके पास वो ability है, काबिलियत है, तो आपको अगर आप नहीं करते तो फिर आप बहुत ज़्यादा selfish हो. आपका सेकंड पॉइंट काफ़ी रेजोनेट कर रहा है कि बहुत कम लोग आर चोजन फॉर दिस. इसका कोई स्पिरिचुअल एंगल है? मुझे ऐसा लगता है, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा पूजा करते हो या, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ बोली, आई सर्व द बीइंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी. आप अगर किसी इंसान के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो जिनको भगवान ने ही बनाया, मुझे लगता है उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल कुछ भी नहीं होता. मैं पूजा भी करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मंदिर में जितना समय बिता रहा हूँ उससे 10 गुना 20 गुना 50 गुना ज़्यादा समय उन इंसानों की लाइफ में कुछ अच्छा करने में कर रहा हूँ जिनको उन्हीं भगवान ने बनाया. तो मुझे लगता है वो चीज़ आपको और ज़्यादा ताकत देती है. और बाय डिफ़ॉल्ट भी ऐसा हो जाता है यार, मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं मेरे एजुकेशन वाले मोड में चला जाता हूँ. तो मुझे लगता है कि वो इनबिल्ट ही है अपने आप ही. लेकिन एक चीज़ और भी है भाई यहाँ पे ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ऑल्सो रियलाइज्ड दैट आई रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग इनपुट्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. मुझे लगता है सामने वाला इंसान विलिंग होना चाहिए बिल्कुल वो इनपुट्स लेने के लिए. ओनली देन आई एम. पहले तो मैं बहुत ज़्यादा बताता था कि आप ऐसा करो ऐसा करो. अभी मैं मेरी थोड़ी सी एनर्जी कंजर्व करता हूँ. मुझे लगता है सामने वाला इंसान सुनने को रेडी है और इम्प्लीमेंट करेगा, तभी मैं बोलता हूँ, वरना मैं चुप रहने में विश्वास उस केस में रखता हूँ. ओके. ऐसा आपका कोई पॉइंट जिसमें आपका किसी कस्टमर या आपके किसी कस्टमर ने आके आपसे पूछा कि राहुल जी दिस हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग फॉर मी? यार बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे ऐसे. हमारे एक मेंटी हैं, उनका नाम रवि चंदीरामानी है. उनके बेटा पैदा हुआ था. उसने मुझे मैसेज करा था कि राहुल सर ये मेरे बेटे की फ़ोटो है, आपकी वजह से मैं मेरे बेटे को एक उतना अच्छा भविष्य दे पाऊँगा जो मुझे कभी नहीं मिला. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एक हमारे मेंटी हैं, उनका वॉइस नोट भी अभी हाल फिलहाल में मेरे पास आया था. तो वो इवेंट में मैं खड़ा था, तो वो खड़े हुए, उसने कहा सर हमने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन आपकी वजह से जो आज हमारी लाइफ में हो रहा है, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको हम भगवान के तरीके से ही देखते हैं. वैसे बहुत सारे मैसेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं हैबिचुअल नहीं हुआ, आई बिकम हैबिचुअल, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं कंप्लेसेंट ना हो जाऊँ इस चीज़ को लेके, कि आई वॉन्ट टू ऑलवेज बी हैप्पी वेन एवर आई गेट अ मैसेज लाइक दैट. आई वॉन्ट टू ऑलवेज, बिकॉज कोई चीज़ आपके संग बार बार होती है तो आपको लगता है ना ये तो नॉर्मल है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है यार. लोगों को ऐसे मैसेजेस नहीं मिलते हैं, लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. आई सी देयर आर पीपल. एक टीचर है, उनका नाम चेतन सेतिया है, मुझसे एज में बड़े हैं. जब हम स्टेज पे थे तो उन्होंने मेरे पैर छुए थे. मैंने कहा अरे भाई यार आप मुझसे बड़े हो, आप एक गुरु हो. उसने कहा भाई गुरु हूँ, लेकिन आप मुझसे छोटे हो, लेकिन आपने जो मुझे सिखाया वो मेरे परिवार में भी किसी ने नहीं सिखाया आज तक. अपने हमें लाइफ जीने का तरीका सिखाया. सो मैं फाजिल का गाँव से आता हूँ. मैंने आज तक अपनी लाइफ में जितना भी कुछ देखा था उससे बहुत ज़्यादा हमने करा. इट नॉट जस्ट अबाउट मनी. उनकी लाइफ में अगर मैं मनी का एग्जांपल दूं, जितना उन्होंने अपने करियर में 20 ईयर्स में पैसे कमाए थे, हमारे संग जुड़ने के बाद उतना अमाउंट उन्होंने एक साल में कमाया, फिर उतना अमाउंट एक महीने में कमाया, फिर उतना अमाउंट एक दिन में कमाया. तो इतना पैसा तो आप तभी कमा पाओगे ना जब आप एक शिक्षक के तौर पे ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाओगे. और जब आप पैसे कमाते हो तब आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी करते हो. अब उनकी सिटी में जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कोई मॉल्स ये वो कुछ भी नहीं है, हमारी सिटी में हम लोगों ने लोगों को हायर करा है जिनको हम 80,000 90,000 50,000 1 लाख रुपए सैलरीज देते हैं, जो उनके लिए सपना है. क्योंकि उनकी सिटी में कभी भी किसी को इतना पैसा मिलने का, जब कॉर्पोरेट्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतना पैसा कैसे मिलेगा. तो वो सारे मौके उनको मिलते हैं. तो जब आपके काम की वजह से इतनी सारी चीज़ें होती हैं, देन यू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड, एंड देन यू फील अरे यार आप और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो. और अब जब ये काम हम ग्राउंड लेवल पे, फाउंडेशनल लेवल पे कर देंगे, व्हेन अ पर्सन इज अ किड, तो वो तो फिर आगे कितने सारे लोगों की लाइफ में और इम्पैक्ट कर पाएगा ना यार. पूरी ट्रैजेक्टरी बदल जाएगी. राइट. तो जब आपको इतनी सब ब्लेसिंग्स मिल रही है, इतने सब कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी थॉट आता है आई एम टू गुड, या फिर आप में एक सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी आपने पाली हुई है? सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी है, बट एट द सेम टाइम मेरे को ये वाली फीलिंग हमेशा रहती है आई एम वेरी गुड. जब मैं टोस्ट मास्टर्स में भी था, क्योंकि हम इसके बारे में भी बात कर रहे थे, और ये क्यों ज़रूरी है ये भी बताता हूँ. आई डिलीवर्ड 50 स्पीचेज ऑन 50 कॉन्सिक्यूटिव डेज. मेरे को रोज़ एक नई स्पीच लिखनी होती थी मैनुअल के हिसाब से, और रोज़ डिलीवर करनी होती थी. भाई वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ट्रैवल भी करना होता था. मैंने स्पीचेस दी थी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, देहरादून, जयपुर, और रोज़ एक स्पीच देनी थी. तो जैसे मैं देहरादून जा रहा हूँ, रात को पहुँचा,
रात को निकला, सुबह पहुंचा, स्पीच डिलीवर करी, रात को निकल के वापस देहरादून आ गया, क्योंकि बाई बस या ट्रेन ही जाता था, फ्लाइट के तो फंड्स नहीं थे। तो आपके अंदर जब तक वो कन्विक्शन नहीं रहेगा ना दैट आई एम बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल, मेरे अंदर हमेशा वो कन्विक्शन होता था भाई जितने भी लोग ऑडियंस में बैठे हुए हैं मैं इन सबसे बहुत अच्छा हूँ। और इसी वजह से मैंने अगर स्पीच पूरी प्रिपेयर भी नहीं करी है तो भी मैं बहुत तोड़ के अच्छी सी स्पीच दे दूंगा, मैं खेल जाऊंगा। हाँ, वो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। दैट इज नॉट बीइंग एरोगेंट, दैट इज नॉट बीइंग इगोइस्टिक, बट दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट सेल्फ लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक आपको अंदर से वो कन्विक्शन नहीं आएगा, देखो बहुत सारे लोग ना इस वजह से भी रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते अपने लिए, बिकॉज वो अपने आप को इतना काबिल ही नहीं मानते हैं कि ये रिजल्ट मेरे पास आ पाएंगे। तो जब तक आप खुद को इतना काबिल ही नहीं मानोगे तो आपके एफर्ट्स उस डायरेक्शन में लगेंगे ही नहीं, तो आपके पास कभी भी वो रिजल्ट नहीं आते। तो आई हैव द ह्यूमिलिटी बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई डू। एंड मेरे को बहुत सारे लोग बोलते भी है कि ये तो कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा यार इफ आई हैव टू चूज बिटवीन बीइंग अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, आई वुड चूज टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, वो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसा अभी नहीं है, जब मैं कॉलेज में भी था एक कंपटीशन होने वाला था, आईबीएस करके जो कॉलेज होता है वहाँ पे, तो मेरी जो टीचर थी मैंने उनको बोला मैम आपको कौन सी मिठाई पसंद है आप बताओ। कह रही क्यों? मैंने कहा जब मैं शाम को जीत के आऊँगा वहाँ पे कॉलेज कॉम्पिटिशन आई गिव यू दिस। कह रही आपको पता है वहाँ पे कितने टफ कॉम्पिटिशन है वो? मैंने कहा मैम वो सब देख लेंगे। शी अगेन, मैंने कहा मैम मिठाई कौन सी पसंद है व्हाट्सएप करते ना हम जीतेंगे। एंड वी वन दैट कॉन्टेस्ट बिकॉज आप वहाँ पे जाने से पहले ही वो वाइब्रेशंस अपने भेज चुके हो और आप उसी इंटेंट के संग काम कर रहे हो दैट यू आर गोइंग टू विन। अगर आप ही के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। एंड देन व्हेन यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर इन इकोनॉमिकली ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बैकअप है, सपोर्ट सिस्टम आपके पास इतना नहीं है, तो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ यू नीड टू बी अ शेमलेस सेल्फ प्रमोटर। आपको ही इतनी ताकत है कि आप ही अपने काम के बारे में बात करोगे, आप ही लोगों को उसके बारे में बताओगे, और कोई बिलीव करे या ना करे आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। और अगर किसी दूसरे इंसान को वो लगेगा कि यार ये तो थोड़े से नार्सिस्टिक वाले फीचर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉस। जब आपको और कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, अगर आप भी अपने आप को डाउट करोगे तो आप कैसे सक्सेसफुल बनोगे ना यार उस समय। तो ये जो इनहिबिशन फ्री रहने वाला माइंडसेट है आपका, जो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हो, ये डे वन से ही है या आपने कहीं पिकअप किया? डे वन से थोड़ा था, फिर जब हम इतने लंबे समय तक थे बिना पैसों के उससे और ज़्यादा डेवलप हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर आपको डर लगना बंद हो गया चीज़ों को लेके। अब मुझे मनी को लेके फियर नहीं होता। आई नो दैट आई विल क्रिएट मनी, आई विल क्रिएट मॉनेटरी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर माई सेल्फ। कहीं से भी कुछ भी करके मैं वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दूंगा। वो फेथ आ गया अपने अंदर। और यही प्रॉब्लम होती है मैक्सिमम लोगों के संग, बिकॉज देखो आपको अगर कुछ भी अचीव करना है आपको पैसा तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा शुरू में। बिल्कुल। आप पैसा इन्वेस्ट करने से क्यों डरते हो? बिकॉज आपको अपनी काबिलियत पे शक है कि मैं इतना पैसा जनरेट कर पाऊंगा कि नहीं। देयर इज अ मनी बैरियर। आप उस मनी बैरियर को तोड़ते किसकी वजह से हो? जो आपका फेथ है कि यार मैं पैसे जनरेट कर सकता हूँ। आपके पास अगर वो फेथ नहीं है तो आपका मनी बैरियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हो। वो तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो मनी बैरियर आपका तभी टूटेगा जब आपको अपने स्किल सेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। जब आप फेथ को यहाँ रखोगे और बैरियर को यहाँ पे रखोगे। आप फेथ को भी तो ऊपर तभी रख पाओगे ना जब आपको अपने स्किल सेट पे भरोसा होगा, अदरवाइज तो नहीं कर पाओगे। अगर आप, जो अभी एक टर्म होता है ना, अगर आप डिल्यूशनल जिंदगी जी रहे हो तो आप एक दो बारी तो ट्राई कर लोगे, लेकिन अगर आपका स्किल सेट आपने वर्क अपॉन नहीं कर रखा तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे। बिल्कुल। लेकिन वो भी उस बंदे से तो अच्छा ही है ना यार जिसने डिसीजन ही नहीं लिया। वो नीचे गिरा, कुछ सीख के तो नीचे गिरा ना कम से कम। शायद वापस फिर भी उठ भी पाएगा। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करेगा तो समझ जाएगा यार हिम्मत तो थी लेकिन काबिलियत नहीं बनाई थी। अब काबिलियत पे वर्क कर लूंगा तो हिम्मत वाला फैक्टर तो ऑलरेडी है, इंटेंट है, स्किल सेट के ऊपर वर्क करना है, वो ज़रूरी है। फिर अगर मैं एक चैम्पियन माइंडसेट को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रहा है कि नंबर 1, बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट इज़ बेटर देन अंडर कॉन्फिडेंट। उस कॉन्टेक्स्ट में एक सेल्फ लव और एक सेल्फ फेथ बहुत ज़्यादा अपने अंदर होना चाहिए। 3, बी अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर। राइट। बिकॉज अगर आप स्लो डिसीजंस लोगे तो आपकी उतनी सक्सेस पोस्टपोन हो जाएगी लाइफ में। एंड नंबर 4, जो शायद कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जी से लग रहा है, आप बहुत क्विक एक्शन टेकर भी हो। बहुत लोग अगर हम आसपास देखते हैं, दे सफ़र फ्रॉम लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, आप कुछ भी उसको टर्म ले लो, बट आप ये भी बोलोगे कि एज अ चैम्पियन माइंडसेट आपके एक्शन टेकिंग क्वालिटी भी बहुत तेज़ है। वो है और वो बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इंसान को देखो जो सक्सेसफुल हुआ है, उनकी जो एबिलिटी होती है डिसीजन मेकिंग की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, बिकॉज वो इंट्रोस्पेक्शन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। अब अगर हम आज भी जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं इस बारे में हमारी बात परसों ही हुई थी, परसों 2 दिन के अंदर सारी चीज़ें मटीरियलाइज हो जाती हैं। और वो चीज़ तो आप देखो ना, आपको भी तो वीडियो जो आज हम कर रहे हैं इसके बारे में शायद कल परसों ही पता चला ना। आपने भी तो टाइम निकाला, एफर्ट निकाला, आपने यहाँ पे आने का एफर्ट डाला, जो मेरे लिए मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने वो एफर्ट डाला।
लेकिन आपने जल्दी डिसीजन लिया, इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे हो पा रही है। ये प्रॉब्लम लोगों के संग होती है कि लोग डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं। आपने शुरुआत में बताया कि आपके ग्रैंडफादर का बहुत अच्छा रोल था, एंड मैंने आपकी वेबसाइट पे भी पढ़ा है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, पैशनेट स्पीकर, एजुकेटर एंड ब्रदर। नॉर्मली मैंने ये नहीं दिखा है, व्हाई ब्रदर? I have a lot of love and affection for my younger brother, and I also feel that he has helped me a lot in my career, even though he is my younger brother. जब वो समय था जब बिकॉज उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें करना मुझसे पहले शुरू कर दिया था, तो उनके पास जल्दी रिजल्ट्स आए थे। तो इनिशियली हम जितने भी इवेंट्स में गए थे, हम एक इवेंट के लिए वॉलंटियरिंग करने के लिए टोनी रॉबिन्स के इवेंट के लिए सिंगापुर गए थे, फिर एक रसल ब्रंसन जी का इवेंट अटेंड करने के लिए हम यूएस गए थे। तो वो सारे इवेंट्स के लिए जितना भी फंड्स था, ट्रैवल का, वीज़ा का, इवेंट टिकट्स का, वो सब मेरे भाई ने पे करा था। And this is just the monetary aspect, the support that I got from him when I was going through difficult phases in my life. वो उस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करता हूँ, और उसकी वजह से मतलब मेरा जो अफेक्शन है मेरे भाई के लिए वो और भी बहुत ज़्यादा है। आपने आजकल ये सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कि एंड्रयू टेट करके एक इंसान है और उनका ब्रदर भी है, वो दोनों बहुत ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं। आपका बिगेस्ट लेसन क्या रहा है अबाउट ब्रदरहुड? आपकी लाइफ में ऐसे लोग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनके संग आप चीज़ें डिस्कस कर सको, ट्रांसपेरेंटली डिस्कस कर सको, जिनका जजमेंट फ्री आपके प्रति रवैया हो। ऐसे लोग आपकी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऐसा बहुत बार होता है जब मैं और भाई बैठ के बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, तो उसमें भी हम बहुत सारे नए नए आइडियाज़ लेकर आ जाते हैं। जैसे कभी हम दिल्ली से देहरादून आ रहे हैं, अगर हम कैब से आ रहे हैं तो हमारे फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालेंगे और 4-5 घंटे वी विल जस्ट डिस्कस एंड विल कम अप विद 20 न्यू थिंग्स एंड 20 न्यू आइडियाज़। सो हैविंग सच पीपल इन योर लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, एंड फॉर मी आई एम ऑलवेज अ पीपल्स पर्सन, आई ऑलवेज चूज पीपल ओवर मनी। अगर आज की डेट में भी मैं ट्रैवल करता हूँ कहीं ओवरसीज़, मेरे फ्रेंड्स वगैरह अगर साथ में चलते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ डूइंग दिस, तो आई पे फॉर देयर फ्लाइट टिकट्स, देयर होटल्स, वीज़ा, एवरीथिंग आई पे फॉर। भगवान ने सक्षम बनाया है तो, और अपने लोगों के संग नहीं करोगे तो किस में करोगे? तो मैं वो सारी चीज़ों के लिए करता हूँ। मेरे लिए लोग मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मेरे लिए मोर देन मनी। तो एक तो घर पे ही है अपने भाई के संग, मेरे और भाई के संग आज भी ऐसा होता है कि हमको कोई इंटरनेशनल पेमेंट्स आती हैं, हम उसका ट्रैक नहीं रखते कि कहाँ से कितना पैसा आया, कितना तेरे पास जाएगा, कितना मेरे पास जाएगा। वो सारी चीज़ों का हम लोग ट्रैक उसमें इतना नहीं रखते हैं। ऐसा होना चाहिए ना लाइफ में यार, कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो। और आप अपने भाई के संग अगर ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ले जा रहे हो, तो फिर आप बहुत समय पे जब आपके टफ फेजेस होते हैं, सेल्फ डाउट होते हैं, वो अपने आप ही हट जाता है अगर आपके पास लाइफ में कोई ऐसा होता है जिसके संग आप डिस्कशंस कर पाओ। नहीं, टचवुड आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ये डे वन से ही था या आपस में आप बचपन में लड़ते भी थे एज ब्रदर्स? नहीं यार, लड़ाई तो सब में होती है। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने उसको तंग भी करा है, बहुत बड़े भाई का मैंने फ़ायदा उठाया है, मैगी बना, जूते उतार ये काम कर बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत तंग करा है उसे बचपन में। ठीक है, इतना तो लिबर्टी ले लेते हैं बड़े भाई होने के नाते। नहीं, बिल्कुल। लेकिन द लव वॉज ऑलवेज देयर, ऑलवेज फ्रॉम बोथ द साइड्स, दैट इज़ फॉर श्योर। आपने अपने ब्रदर का रोल बताया, आपके मदर फादर का क्या रोल था इन मे बी शेपिंग योर माइंड सेट और शेपिंग योर कैरेक्टर एज अ ह्यूमन बीइंग? I feel that I am connected a lot to both of them. और जब हमारा वो वाला टाइम था जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे इकोनॉमिकली और बाकी, तो मॉम ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। तो पापा उनको समझाते थे कि कोई बात नहीं, रिजल्ट्स आएंगे, आप रेगुलरली एफर्ट डालोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कुछ गलत राह पे नहीं है, वो चीज़। एंड इतने लंबे समय तक जब आप फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे होते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स को बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं लोगों की, कि आप तो कहते थे आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपका बड़ा बेटा तो आप बोल रहे थे MBA में ये भी करता है वो भी करता है, अभी तो वो सड़क पे खड़े होकर ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। फॉर देम टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, आई वुड से बिकॉज ऑफ अस एंड स्टिल सपोर्टिंग अस, दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। अगर वो इतने सपोर्टिव नहीं होते तो हम इतने लंबे समय तक कंटिन्यू कर ही नहीं पाते यार। एंड देयर वर ऑल्सो मोमेंट्स जब हमें पैसों की ज़रूरत पड़ी, हमने घर वालों को बोला, कई बार नहीं बोलने पे भी उन्हें दिख जाता था क्योंकि पेरेंट्स हैं, एंड दे हेल्प्ड अस फाइनेंशियली ऑल्सो, वो भी उन्होंने करा वहाँ पे। तो इमोशनल सपोर्ट भी था, फाइनेंशियल सपोर्ट भी था, लोगों से भी वो लड़ने को तैयार थे हमारे लिए कि वो कर लेंगे आप, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ऐसा। आई स्टिल रिमेंबर आवर ग्रैंडफादर इज़ नॉट विद अस नाउ। तो एक बारी जैसे कुछ बात हो रही थी तो किसी रिश्तेदार ने बोला कि तूने शादी नहीं करी, दादाजी तेरी शादी नहीं देख पाए। तो माय डैड इमीडिएटली इंटरव्यून, उसने बोला दादाजी तो बाद में इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो तो किसी की भी शादी नहीं देख पाए थे। तो मतलब दे वर ट्राइंग टू मेक मी फील बैड एंड ऑल, बट माय फादर इमीडिएटली इंटरव्यून।
तो वो सब चीज़ों में ऑल्दो माई They डैड came इज to your लाइक, rescue. या ऑल्दो माई डैड इज़ द यंगेस्ट वन, 4 उनके बच्चे थे दादाजी के, वो सबसे छोटे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ही सटल तरीके से प्रोटेक्ट करना, सब कुछ करना, ही डज ऑल ऑफ दैट, जो रियलाइज़ नहीं होता. फिर हमारे से ज़्यादा खुश हमारे घर वाले होते हैं, हमारे इवेंट की स्टोरीज डालते हैं, हमारे वेबिनार की स्टोरीज डालते हैं, हमारे इवेंट की स्टोरीज डालते हैं जब वो वहाँ पे आते हैं. आज से कुछ दिन पहले तक भी मैंने देखा था पापा मम्मी की जो व्हाट्सएप स्टेटस था, वो व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर था, वो जो हमारा दिल्ली में इवेंट हुआ था, उस गेट पे जहाँ पे मेरे और सौरभ की होर्डिंग लगी थी बड़ी बड़ी, उसके सामने जो उन्होंने फोटो खिंचाई थी वो वाली फोटो डाली हुई थी वहाँ पे उन्होंने. तो आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं यार. हमारे पेरेंट्स, वी आर वेरी लकी दैट दे हैव डन सो मच फॉर अस, and now that is the reason why we have shifted back to Dehradun, our hometown, so that we could spend more time with them. इसमें अब आप आफ्टर लेट्स से assimilating all your knowledge for last 15-20 years, आप क्या फैमिली वैल्यूज क्रिएट करें अपनी फैमिली के लिए? I feel एक ऐसा इन्वायरमेंट जो जजमेंट फ्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं आप एज इट इज़ कम्युनिकेट कर पाओ विदाउट फीलिंग कि यार मैं इस चीज़ के लिए जज तो नहीं करा जाऊँगा, मुझे ये बताने पे डांटा तो नहीं जाएगा. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इन्वायरमेंट होना, नॉट जस्ट इन आवर हाउस बट ऑल्सो इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई अलाउ माई टीम मेम्बर्स टू कमिट मिस्टेक्स. आई डोंट गेट एंग्री ऑन दैट. आई गेट एंग्री व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ इंटेंट और लैक ऑफ एफर्ट. उस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ. बाकी गलतियाँ करने में मैं उनको अलाउ करता हूँ. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई फील कि ये वाला इन्वायरमेंट होना चाहिए. सेकेंडली, द थिंग दैट आई बिलीव इन, एम्पैथी एंड giving more emphasis on people than money, giving more importance on relationships, and also to make them understand कि कोई भी relationship इस दुनिया में it always starts with giving. ये समझना बहुत ज़रूरी है. These are the things that I want to incorporate. Beautiful. So now let's move on to our rapid fire round. What is that one quote that you live by? Standing at the bottom, looking at the sky, how can you win a battle when you don't even try? If you were not doing what you're doing today, what would you be doing? I would somewhere be contributing. Maybe I would have been in a corporate at the managerial position, and there also I would have been contributing to my juniors and my peers. What is the maximum amount of money that you've made in a year? एक साल में, I generally don't talk about money, but yeah, 9 figures के ऊपर हम लोगों ने revenue generate करा है. And lastly, what is that one advice that you think you followed very late in life? I followed very late in life. मुझे ऐसा लगता है कि द आइडिया ऑफ रियलाइजिंग दैट टू बिकम सक्सेसफुल इज़ वेरी ईजी, वो कन्विक्शन आने में समय लगा. वो मैं लोगों को अभी से देना चाहता हूँ दैट जितना मुश्किल आपको लगता है उतना मुश्किल नहीं है. एंड एक पर्टिकुलर लेवल आने के बाद तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं. इट्स लाइक आप हाईवे पे जा रहे हो, जब आप 5th गियर पे चले जाते हो आप टक करके निकल जाते हो आगे. वो फेज़ आपकी लाइफ में आ जाता है अगर आप अपने स्किल सेट के ऊपर वर्क करने लग जाओ. तो वो आइडिया कंसीव आप जितनी जल्दी कर ले जाते हो उतना अच्छा है आपके लिए. And one last question for the audience. If someone is watching you, Rahul ji, and he's thinking in his mind, can I achieve my dream? आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? 3 चीज़ें आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला, आप जो भी अभी काम कर रहे हो, क्या लॉन्गर रन में आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ये पाथ, ये डायरेक्शन आपको फुलफिल करता है कि नहीं करता. जैसे हमने स्केलेबिलिटी और बाकी सारी चीज़ों को बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, you might be very good at your craft, but you also need to have the stamina and develop the stamina so that you can stand and weather all the storms that come your way. आप क्या वो चीज़ करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बिकॉज अगैन ये बात सच है कि सक्सेसफुल होना ईजी है, बट देर इज ऑलवेज अ प्राइस दैट यू शुड बी विलिंग टू पे. आर यू विलिंग टू पे दैट प्राइस हैप्पीली कि ठीक है यार ये तो पार्ट एंड पार्सल है, मैं करने के लिए रेडी हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड, आपका मनी के संग जो एसोसिएशन है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. That you want to earn money for all the good reasons, and you want to understand that this is going to come to me easily once I have worked upon my skill sets. ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. और एक चीज़ अगर मैं और बोलना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बार बार सुना भी होगा, आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपको कंट्रीब्यूट करें. आई कॉल इट द 6 फीट, कि मेरा 6 फीट बहुत अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे 6 फीट के अंदर मैं बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेस नहीं देता हूँ, क्योंकि वो मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस, हर चीज़ को डिफाइन करता है. तो वो 6 फीट आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है. आपके 6 फीट को अच्छा बनाने के लिए अगर आपको ज़्यादा पैसे लगाने पड़े, ज़्यादा एफर्ट करना पड़े, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, अपने नियर बाय विसिनिटी से बाहर निकलना पड़े, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इफ द 6 फीट अराउंड यू इज़ नॉट इंस्पायरिंग यू टू डू वेल, देन आप कुछ भी कर ले जाओगे ना, रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है. बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी टफ डेज. तो जब वो टफ डेज होंगे एंड यू डू नॉट हैव एन इकोसिस्टम जिसमें आप वापस जाके डिस्कस कर सको एंड यू गेट बैक अगेन टुमारो विद द सेम काइंड ऑफ एनर्जी,
फिर रिजल्ट लेकर आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो उसके लिए आपके आसपास के लोग होना बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको बिल्ड करें. एंड इफ़ यू कैन नॉट हैव दैट एनर्जी और दोज पीपल ऑफलाइन, यू लुक फॉर वेज जिससे कि आप ऑनलाइन उस कम्युनिटीज़ का पार्ट बन सको. Thank you, Rahul ji. It was wonderful talking to you, and thank you for making success easy for everyone who's listening to you. Thank you so much. Thank you so much.